Good afternoon, everybody. It's indeed a matter of great pleasure for all of us here in the Ministry of Defense to connect with our students from across the country, students who are the future of India, and bring to them the stories of valor and sacrifice of our brave hearts, the Gallantry Award winners. We have with us today over 750 schools joining us directly across the length and breadth of the country. Indian Armed Forces and their valiant soldiers, sailors, and airmen guard our borders and territorial sovereignty. In order to honor their sacrifice and to acknowledge their bravery, the government of India had instituted the Gallantry Awards. Sometime in 1950, 26 January 1950 to be precise, 3 Gallantry Awards were instituted by the government of India that were the Paramveer Chakra, the Mahavir Chakra, and the Veer Chakra. These 3 awards are given for the acts of bravery in the face of the enemy, that is, during the wartime situation. On 4th January 1952, 3 more awards were instituted. They were Ashok Chakra Class 1, Class 2, and Class 3. Subsequently, these 3 awards were renamed as Ashok Chakra, Kirti Chakra, and Shaurya Chakra. These 3 awards are given for acts of bravery during peacetime and not in the face of the enemy. The Ministry of Defense maintains a record of all these Gallantry Award winners. We have a portal, a website, the Gallantry Award portal, which is a repository of all information about the Gallantry Award winners. This portal was inaugurated by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, in 2017. Various activities are conducted under the aegis of this portal, and one of them is Project VeerGatha. During the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Government of India, the Ministry of Defense, in conjunction with the Ministry of Education, started off with Project VeerGatha, wherein the stories of our brave hearts is being brought down to the school levels in order to inspire our children and make them knowledgeable about our Gallantry Award winners. As part of this project, interaction, physical interaction, as also online interaction is being conducted during this period, that is starting from September 13th to November 13th. As part of this series, today we have the second webinar, and it gives me immense pleasure to welcome a very, very distinguished panel. We have with us today Brigadier M. Shri Kumar, Shaurya Chakra, joining us from Chennai. On my left, we have Group Captain Anindo Sur, Vayu Sena Medal, Gallantry. And on my right is Commander Supradeep Chenupati, Nausena Medal, Gallantry. Brigadier Shri Kumar की इनिशियल ट्रेनिंग और एजुकेशन सैनिक स्कूल कजरकोटम में हुई थी। सैनिक स्कूल से पास होने के बाद ब्रिगेडियर श्री कुमार नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1986 में ज्वाइन किया और आईएमए से 1989 में पास आउट होके इंडियन आर्मी के एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड बटालियन 7 सिख में कमीशन लिया। ब्रिगेडियर श्री कुमार की 32 इयर्स की सर्विस में उन्होंने हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों में सर्व किया, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है
वहां पे उन्होंने सर्व किया। हाई एल्टीट्यूड में चाइना के अपोजिट बॉर्डर में उन्होंने सर्व किया। रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में और पंजाब के प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स में, हर विभिन्न इलाकों में इन्होंने एक बहुत ही सफलतापूर्वक इन्होंने सर्व किया। और 2002 के एक बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन के दौरान, जहां पर उन्होंने 3 मिलिटेंट को मार गिराया और उन्हें इस साहसपूर्ण कार्य के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी ने शौर्य चक्र से नवाजा था। ब्रिगेडियर श्री कुमार हमारे साथ, जैसे मैंने बताया, चेन्नई से ज्वाइन किया है और बाद में हमें वो अपने इस एक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ग्रुप कैप्टन अनिंदो सूद एक फाइटर पायलट हैं और इन्होंने 1994 में पहले एनडीए में ट्रेनिंग करी और उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम में इन्होंने कमीशन लिया। उनकी अभी तक की सर्विस में ग्रुप कैप्टन सूद ने 4,200 आवर्स से ज्यादा फ्लाइंग करी है, जिसमें इन्होंने जैगुआर्स और मिग-21 लड़ाकू जहाज उड़ाए हैं। इन्होंने भी 2002 में एक नाइट टाइम ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान एक इनके जहाज में कुछ इमरजेंसी हो गई थी और उस इमरजेंसी को सही करने के वक्त बहुत ही खतरनाक मैनूवर किए थे और वो मैनूवर उनके जान और एयरक्राफ्ट के लिए बहुत घातक साबित हो सकते थे। ग्रुप कैप्टन सूद ने अपने संतुलन को बिना खोए जहाज को एक खतरनाक मैनूवर करते हुए एक सेफली लैंड कराया और अब अपनी देश के लिए बेशकीमती जहाज बचा लिया। उनका ये ऑपरेशन हम 19 की जवानी सुनेंगे विस्तार से। मेरे दाहिने कमांडर सुप्रदीप चेनुपति बैठे हैं। कमांडर सुप्रदीप नेवल एकेडमी से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी। नेवल एकेडमी के बाद अपनी नेवी की आगे एडवांस ट्रेनिंग करने के बाद इन्होंने इंडियन नेवी में एक गनरी ऑफिसर की तरह इन्होंने कमीशन लिया। कमांडर सुप्रदीप का स्पेशलाइजेशन गनरी में और मिसाइल वॉरफेयर में है और अपनी सर्विस के दौरान विभिन्न शिपों में इन्होंने काम किया है, जिसमें कृपाण, गोदावरी, शक्ति जैसे महत्वपूर्ण शिप्स शामिल हैं। कमांडर सुप्रदीप ने इंस्ट्रक्शनल टेन्योर्स भी करे हैं, जिसमें एनडीए में वो डिविजनल ऑफिसर थे और बाद में नेवल एकेडमी में स्क्वाड्रन कमांडर भी रहे। 2006 में एक रात को जहां पे ये पोस्टेड थे, एक सिविलियन यॉट जो मलेशिया से आ रही थी, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन से 3 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रात का वक्त था, समुद्र में एक जहाज पे एक्सप्लोजन होना, उसमें से कुछ लोग समुद्र में गिर गए। समुद्र में जब एक्सप्लोजन हुआ था तो वहां पर तेल पानी में बिखर गया और उसमें आग लग गई। इस घातक स्थिति में कमांडर सुप्रदीप ने एक छोटी सी नाव में बैठ के, जिसे जेमिनी का नाम से जाना जाता है, अपने उस एक्सीडेंट साइट पे गए और वहां पर उन्होंने उन तीनों की जान बचाई। इसके बाद उन्होंने एक बहुत साहसपूर्ण कार्य किया, जिसमें जिस यॉट का में एक्सप्लोजन हुआ था उसको आग से निकालकर सेफ्टी से एक अलग इलाके में ले गए, जिससे कि हमारा जो मूवमेंट था वो आगे बंद ना हो जाए, तो ये कार्य करना जरूरी हो गया था। तो ऐसी दोनों जो साहसपूर्ण कार्य किया था, गवर्नमेंट ने इन्हें नौसेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा था। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए
मैं ब्रिगेडियर श्री कुमार से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक्शन के बारे में आप सबको बताएं। ब्रिगेडियर श्री कुमार। Thank you, Rajneesh. I hope I'm audible. Yes, yes, Shri, you are audible. Okay, thank you, Rajneesh, for very kind introduction. और ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि देश के हमारे स्कूल्स के बच्चों के सामने मुझे अवसर मिल रहा है टू स्पीक टू यू ऑल on something which it was a gallantry action which I did and I got an award for that. But उससे ज़्यादा मेरे को खुशी इसलिए है कि मेरे को आप लोगों से सबसे बात करने की मौका मिल रहे हैं और जो मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जैसे कर्नल रजनीश ने बताया इंट्रोडक्शन में, आई एम ब्रिगेडियर श्री कुमार, रिटायर्ड। मैं इसी साल अप्रैल में आर्मी छोड़ा था और अभी मैं चेन्नई में सेटल्ड हूँ। मेरा सर्विसेज में ज्वाइन करने का टाइम जो है 1986 में मैंने इंडिया ज्वाइन किया और 1989 में 7 बटालियन सिख रेजिमेंट में कमीशन हुआ एज लेफ्टिनेंट। और 7 बटालियन सिख रेजिमेंट जैसे कि आप जानते हैं वो एक सिख बटालियन है, उसमें सारे ट्रूप्स सिख सोल्जर्स है और मैं हूँ केरला के। और जैसे अपने फौज की खासियत है कि हम एक हर जगह के सोल्जर्स ऑफिसर्स अलग अलग जगह के एक यूनिट बनने में एक यूनिट का जो कमांड जो है या ऑफिसर्स जो है अलग अलग जगह के होगी। ट्रूप्स मान लो सिख रेजिमेंट में ट्रूप्स सारे सिख सरदार है, बट यही एक हमारी आर्मी की खासियत है कि सिख सोल्जर्स हो या कहीं भी एक जगह के सोल्जर्स हो, उनको कमांड करने के लिए मौका जो है किसी भी इंडिया के किसी भी प्रदेश के ऑफिसर होंगे। तो इस प्रकार से मैं सिख रेजिमेंट में पहुंच गया और मेरी सर्विस पूरा इसी रेजिमेंट में हूँ। और ये जो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, जो जिसके जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था अभी, ये अप्रैल 2002 में हुआ है, जबकि मेरा तकरीबन 13 साल सर्विस हो गया था और मैं एक कंपनी कमांडर था। मैं कंपनी कमांडर मतलब तकरीबन 100 सोल्जर्स होंगे मेरे नीचे। और हमारी पलटन और मेरी कंपनी जो है जम्मू कश्मीर में रजौरी के एरिया में डिप्लॉयड थी। रजौरी जो आप जानते हैं जम्मू से तकरीबन 100 किलोमीटर, और वहाँ से रजौरी से आगे तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जो है हमीरपुर जगह है। ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी बॉर्डर के ऊपर था और वहाँ पे हम डिप्लॉयड थे। और 2002 उस टाइम था जब पे हमने ऑपरेशन पराक्रम डिक्लेयर किया हुआ था। पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम डिक्लेयर किया था और उसी दौरान पूरी फौज जो है बॉर्डर और एलसी के ऊपर तैनात थे। और उस समय जो हमारे रिलेशंस था पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी ख़राब था। बॉर्डर के ऊपर खूब शेलिंग चलती थी, दिन रात शेलिंग चलती थी। और इसी दौरान यही मौका मतलब यही यही जो ओवरऑल एनवायरनमेंट देखते हुए पाकिस्तान ने भी काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन करा रहे थे टेररिस्ट को कश्मीर के अंदर। तो काफ़ी टेंशन वाला टाइम था। रोज़ रात को हमें एम्बुशेस लगाने पड़ते थे और हमारे पास नाइट विशन डिवाइसेस और नाइट विशन इक्विपमेंट भी थी, जिससे हम रात को ऑब्जर्वेशन करते थे एलसी के ऊपर और ये देखते थे पूरी रात बैठ के, ये देखते थे कोई हमारे तरफ इन्फिल्ट्रेट तो नहीं कर रहे। और काफ़ी हमने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है एलसी के ऊपर ही जो है हमने रोकते थे और फायर करते थे, वो फिर पीछे भाग जाते थे। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी काफ़ी हो रहे थे हमारी बटालियन एरिया में। तो इसी दौरान जैसे 27 अप्रैल 2002 में तकरीबन 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो गया था। सो उस समय मेरे एक सर्वेलेंस पार्टी जो लगा हुआ था उन्होंने इंफॉर्मेशन पास किया मुझे कंपनी हेडक्वार्टर में कि ऐसे ऐसे है कुछ 6 टेररिस्ट जो है वो एलसी पार कर रहे हैं और इनको हमने हमारी जो नाइट विशन डिवाइस से हमने ऑब्जर्व कर लिया।
और ये जो इनकी जो रूट्स एंड ऑल, जो हमारे एरिया में जो रूट्स है, ये सब हमने पहले से ही रखी किए हुए थे। हमें पता था कि वो जो जिस रास्ते से आएंगे तो कहाँ जाएंगे। सो और वहाँ पे एक प्रॉब्लम यह था कि एलसी के पास खूब शेलिंग चल रहा था। तो वहाँ पे अगर हम उनको वहीं पे हम उनको रोकने की कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम होती थी कि उनकी तरफ से खूब शेलिंग आ जाता था और हमारे भी कैजुअलिटीज होने की चांसेस है। और दूसरी चीज़ है, ये लोग वापस भाग जाते थे और अगले दिन फिर दोबारा आ जाते थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्योंकि हम ये लोग के ऊपर ऑब्जर्वेशन पे थे, हम इनके सर्वेलेंस कर सकते थे। हमने डिसाइड किया कि इनको थोड़ा अंदर आने देते हैं और उनकी रास्ता हम देखते रहेंगे, और जो जो जगह जो हम चूज करेंगे उसी जगह पे उनको हम एम्बुश करके उनको खत्म करेंगे। तो यही डिसाइड किया हुआ था, और उसी के हिसाब से हमने उनको कंटिन्यूस सर्वेलेंस पे रखा, उनकी रास्ता पूरा सर्वेलेंस पे रखा। और हमारी जो सर्वेलेंस टीम है वो लीप फ्रॉगिंग कर रही थी। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है वो आगे आगे मूव करते थे, और एक सर्वेलेंस टीम उसको सर्वेलेंस करता, दूसरी टीम मूव करके दूसरी जगह पे जाते थे ताकि वो रास्ता पूरा जो है उनको ऑब्जर्व कर पाए। और ये करके हमने फिर एक जगह चुना जहाँ पे हम इनको एम्बुश करेंगे और जिनको हम उनको रोकेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। तो वो वाला जगह हमने चुना, और वहीं पे मैंने अपना टीम लेके तकरीबन एक प्लेटून स्ट्रेंथ, तकरीबन अराउंड 30 लोग थे, 30 जवान थे मेरे साथ। उनको हमने एक जगह चुन के वहाँ पे डिप्लॉय कर लिया, और इनकी हमने कंटिन्यूस ट्रैक करते रहे ये लोग कैसे मूव कर रहे हैं। और वो जो जिस रास्ते पे वो जा रहे थे वो उसी जगह जो जहाँ पे हमारा एम्बुश था वहाँ पे वहीं पे आना था उनको, और उसके हिसाब से हमने उसका एम्बुश का एडजस्ट भी कर लिए थे। तो तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जो है ये पूरी पार्टी, जो 6 लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, वो हमारे एम्बुश की साइड में आ गए थे। और जैसे हमारे फील्ड ऑफ फायर में आ गए, हमने अपना एम्बुश स्प्रिंग कर लिया और फायरिंग शुरू होगी। तो जब फायरिंग शुरू होगी तो वो लोग भी आड़ बाड़ पकड़ने की कोशिश की, और मेरे ख्याल से 1 या 2 तो उसी इनिशियल फायरिंग में मर गए थे, और बाकी जो है अपने अपने जगह अलग अलग जगह पे उन्होंने आड़ पकड़ ली, और वो भी वापस फायर कर रहे थे। तो ये वाली कार्रवाई फिर हमने जो है अंधेरा था तो ये किया कि ये डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे एम्बुश ऐसा था कि वो बच नहीं सकते थे क्योंकि हमने चारों तरफ से क्लोज कर लिया था। सो फिर सोचा कि अभी जैसे डे लाइट होगा उसके बाद बाकी जो इनको है इनको हम टैकल करेंगे। तो ये समझ के हमने एम्बुश को जारी रखा, फायरिंग करते रहे, उनको पिन डाउन करते रखे, और वो लोग भी वापस फायर कर रहे थे, और उसको हमने डे लाइट होने तक वेट कर रहे थे, कुछ डिसाइड कर लिया। तो जैसे डे लाइट हुआ तो उसमें फिर ये पता चला कि जैसे इन्होंने वो भी जो 4 या 5 जो जिंदा थे वो भी अलग अलग जगह पे हो गए थे, वो आड़ पकड़ के हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। तो एक मेरे से वो तकरीबन अराउंड 30-35 मीटर्स दूर जो है वो पोजीशन लेके एक हमारी पार्टी के ऊपर वो फायर कर रहे थे, और हमारी जो पार्टी है वो सामने वो पिन डाउन थे कि उनकी फायर के कारण वो भी हरकत नहीं कर पा रहे थे। बट वो जो जो टेररिस्ट था वो मेरे को देखा नहीं था क्योंकि मैं दूसरी साइड में था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अब इसको खत्म करने से ही जो मेरी पार्टी है वहां से निकल सकता है। तो मैंने आगे जाके जो है थोड़ा आगे जाके उसके ऊपर फायर किया। जैसे मैंने उसको फायर किया तो उसने फायर वापस किया, बट वो उसको लग गया था तो वो वहीं पे खत्म हो गया। बट उसके ऊपर जो फायर करने के चक्कर में जो है बाकी जो दूसरी साइड में जिसको मैंने देखा नहीं था, वो उनको पता चला कि इसके ऊपर फायर आ गया तो वो मेरे को देख लिया। उसके बाद उन्होंने फिर दोनों में से एक ने जो है मेरे ऊपर फायर करने लगा, और दूसरा मूव करने लगा कि ये मेरे को जो है एनक्लोज करे और मेरे पीछे साइड से आ जाए। सो मैंने भी अपना हरकत करके जो दूसरे वाले को मैंने फायर कर लिया उसको भी मार दिया। उसके बाद इमीडिएटली जो पीछे जो गया था वो एकदम उठ के जो है, उसको भी पता चला अभी तो और कोई चेहरा नहीं है, उसने उठ के एकदम जो है मेरे ऊपर चार्ज करते हुए आए। तो उसी दौरान मैं फिर पीछे मुड़ के उसके ऊपर फायर करके उसको भी खत्म किया। ऐसे करके जो तीनों जो है खत्म हो गए। और फाइनली फिर जब हम छानबीन किया तो 6 के 6 जो है अलग अलग जगह पे मिल गए, उनकी बॉडी भी मिल गई। और मेरी तरह जो पार्टी थी उनके ऊपर कोई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और पूरे के पूरे 6 को हम जो है वहाँ पे ख़त्म कर पाए। तो यही जो ऑपरेशन था जिसके लिए मेरे को अवार्ड मिला, बट उसके उसके साथ मेरे जेसीओ और एक और जवान को भी अवार्ड मिला। और एक टीम वर्क था, पूरा टीम वर्क था। अवार्ड मेरे को मिल गया क्योंकि मैं टीम कमांडर था, और जैसे भी है उसके हिसाब से मेरी किस्मत अच्छी थी। बट अदरवाइज ये पूरा टीम वर्क था। सारे जवान जो है जो 30 के करीब मेरे साथ था जो एम्बुश लगाए थे, और तकरीबन 8-10 लोग जो सर्वेलेंस टीम में थे जिन्होंने पूरे कंटिन्यूस सर्वेलेंस रखा। ये एक पूरा एक टीम वर्क था जिसके कारण हम इनको ये जो 6 के 6 टेररिस्ट को हम एलिमिनेट कर पाए। ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट जो है जिसके लिए मेरे को ये अवार्ड मिला। बट इसके
इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो फौज का जो काम जो है कि क्योंकि एक इन्फेंट्री बटालियन में जो कंपनी है और प्लेटून है, इसमें जो देश की जो विश्वास है जो फौज के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर, ये इसलिए है क्योंकि ये जो हम जब काम करते हैं, जो भी कार्रवाई करते हैं, एक टीम के तौर पे करते हैं। वहाँ पे जो जवान, एक ऑफिसर जो जवान को कमांड कर रहा है, जवान की जो फेथ है ऑफिसर के ऊपर और ऑफिसर की जो फेथ है जवान के ऊपर, वो 100% है। मुझे यकीन है कि मैं एक ऑर्डर देता हूँ जवान को, वो 100% फॉलो किया जाएगा। और जो जवान जो है वो भी समझता है कि ऑफिसर मेरे को एक ऑर्डर दे रहा है, वो किसी इस पे दे रहा है और मैंने 100% वो करना है, चाहे उसके लिए उसको अपना खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े, वो ऑर्डर जो है फॉलो करेगा। ये नहीं कि मैं एम्बुश लगा दिया और उनके ऊपर फायर आ रहा है तो वो अपना पोजीशन छोड़ के दाहिने बाएं चले जाए और ये ऐसे कुछ कार्रवाई करे जिससे वो टेररिस्ट बच जाए। ऐसे कभी हो ही नहीं सका। वो मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि मैंने अपना जवान को टास्क दिया है, वो 100% करेगा। तो ये कॉन्फिडेंस से जो है ये जो कार्रवाई हम कर सकते हैं। एंड ये खासियत है अपनी जो इन्फेंट्री बटालियंस और आर्मी के जो यूनिट्स हैं उसमें ये खासियत है कि हमें इतनी कॉन्फिडेंस है हमारे ट्रूप्स के ऊपर, कोई भी कार्रवाई हो, कोई भी काम हो, वो 100% हो जाएगा। तो ये है एक लेसन जो है जो मैंने सीखा था। और सेम थिंग, सेम कॉन्फिडेंस ट्रूप्स को मेरे ऊपर भी है कि साहब जो ऑफिसर की ऑर्डर्स है वो हम फॉलो पालन करेंगे, जैसे उन्होंने बताया वैसे ही कार्रवाई करेंगे। वो हमारे लिए भी सेफ है और हम वो कार्रवाई कंप्लीट कर पाएंगे। सो ये एक खासियत जो आप लोगों को सबको जानना चाहिए, और ये हमारी जो इन्फेंट्री बटालियन है उनकी खासियत है। इसके बाद इसका आप लोगों के किसी के भी कोई सवाल हो, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर श्री कुमार। क्वेश्चन आंसर्स हम दोनों प्रेजेंटेशंस के बाद लेंगे। और अभी आपने जो अपना साहसपूर्ण कार्य किया था और जिसकी वजह से आपको शौर्य चक्र मिला था, शौर्य चक्र मैं आप लोग स्टूडेंट्स को, बच्चों को बताना चाहूंगा कि इंडिया में 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। मैंने आपको बताया था कि जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जब लड़ाई डिक्लेयर नहीं होती है उस समय हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, और इंडिया का 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है शौर्य चक्र। ये अवार्ड ब्रिगेडियर श्री कुमार को टेररिस्ट के बरखिलाफ कार्रवाई करने में 2002 में दिया गया था। अब मैं ग्रुप कैप्टन सूर से निवेदन करता हूं कि वो अपने एक्शन के बारे में बताएं। Okay. Can you hear me now? Yeah. Okay. Okay. Good morning. The future generation of India. The next 50. Can you hear me now? Yes. Okay. Good afternoon, young girls and boys. You are the future generation. Whatever the nation does in the next 50 years, you will be leading it. Seeing you in uniform reminds me of my old days when I was in school. Like most of you, I was naughty, but yes, disciplined. Okay, why did I join the Air Force? While I was small, I used to draw. Whatever I would draw, even a mango, if I would draw, I would make a small aircraft at the top of it. Probably that motivated me. Or maybe because my father, he was in HAL and he was the one who was making aircraft. So probably that motivated me.
And that is why probably I joined the Air Force. Okay, now I'll show you a short clip about what the Air Force does. I want you to look at it carefully because at the end of it, I might ask you some questions. So just watch it. Undeterred, unfettered, relentless, 90 years on. Today, an Atmanirbhar and Saksham Indian Air Force is transforming for the future. But the road has been a long and testing one. As the winter of 1947 approached, a young independent India was thrust into the throes of war as tribal hordes invaded the Kashmir Valley. The Indian Air Force rose to the occasion as Dakotas of No. 12 Squadron airlifted the 1st Battalion of the Sikh Regiment into Srinagar as the marauding tribals reached the outskirts of the city. Kashmir was saved by the gallant action of the Air Warriors, who established this crucial air bridge in the first ever joint action in independent India. The Indian Air Force continued to trailblaze this path of glory. In 1965, the unblooded Indian Air Force NADS created history by earning the moniker of Sabre Slayer. 6 years later, the Indian Air Force achieved air supremacy over the erstwhile East Pakistan, enabling the Indian Army to conduct its lightning campaign. MiG-21 made its mark in this war with many noteworthy missions, including a strike on the governor's house in Dhaka. More recently, the Indian Air Force again proved its mettle, with its strike potential being put to good use, this time on the forbidding heights of Kargil. The legacies live on unforgotten. The torchbearers of yesterday shining light on the path ahead. They continue to inspire traditions of gallantry that define the ethos of the service till date. The Indian Air Force has remained steadfast with the nation in times of need, with effective contribution to humanitarian assistance and disaster relief efforts. The skill and professionalism of our air warriors found wide acclaim in the country as well as on foreign land. And their acumen in the air found a match in their performance in other arenas as well. The Indian Air Force continues to guard the skies over our nation. The endeavor, as before, being deterrence through competence.
As the Indian Air Force develops its muscle, it is increasingly looking towards homegrown solutions for transforming itself into a modern aerospace force. Close interaction with domestic developers is helping the Indian Air Force to have bespoke solutions developed for itself. A prime example is the LCH Prachanda, unique in the world for its ability to efficiently deliver firepower with equal lethality in deserts as well as at high altitudes. As the Indian Air Force looks to work smarter, it has imbibed the concept of Atmanirbharta by developing in-house solutions that have led it to becoming a leaner and more efficient fighting force. Satellite scan. The future will see Indian Air Force evolve into an entirely net-centric aerospace force that adopts a system of systems approach to warfare. Okay, enjoyed that? Anybody enjoyed? Raise your hand. Okay, great, great. A lot of people enjoyed it. Nice. Okay, now I'll tell you what happened to me that night. Okay. Can anybody, Abhinav, can you? Huh? Muted. Achha, okay. But he can mute it? We have muted. Achha, okay. Okay, just for your information, I'll tell you some terms and then I'll explain to you what happened to me actually. Okay, what is undercarriage? Undercarriage are the three wheels that come down on a fighter aircraft. Okay. Normally, all fighters, all transport aircraft have three undercarriages. Okay. Then you have the nav attack and the head-up display. In the video which I had shown you, did you see some green thing on the screen? Okay, that was the head-up display. That is what the pilot sees to understand what the aircraft is doing. Disorientation. If you close your eyes and rotate 3 or 4 times, do you really know which side you're looking? No. That is called disorientation. And when you are in the air, there's a very high chances that you might get disoriented if your visual cues are not there. G forces. Normally when you are sitting, जब आप बैठे हो, तो आप पे 1G act करता है. Correct, the physics students? Okay. Normally it's 1G. But when you are pulled away from the ground towards, if you are pulled upwards, you start facing G. As the G forces goes up, your body starts to react in a way wherein your senses reduces. So what happened to me? This was a night routine training sortie for me. I was a young flight lieutenant with about 6 years of service. I took off on a Jaguar aircraft, a fighter aircraft. After taking off, I came in for a landing. When I came for the landing, I lowered my undercarriage or the wheels. जब मैंने उसको lower किया, तो कुछ भी नहीं हुआ. फाइटर में क्या होता है, जब आप टेक ऑफ करते हो, उसके बाद व्हील्स ऊपर कर लेते हैं. बट जब मैंने अंडरकैरेज लोअर किया, कुछ भी नहीं हुआ. सो आई ट्राइड अदर मीन्स. पहले मैंने एक और बार उसको लोअर करने की कोशिश की.
फिर 2-3 ट्राई और सिस्टम्स ट्राई किए। थोड़े देर बाद मैंने इमरजेंसी यूज किया। नॉर्मली एवरी एयरक्राफ्ट हैज एन इमरजेंसी सिस्टम, सो आई यूज द इमरजेंसी। उससे क्या हुआ, सामने का और एक साइड का अंडरकैरेज आ गया। रात को you have to land with 3 undercarriages. You cannot land with 2 undercarriages because of the degree of difficulty that increases. So I tried various other means and combinations to get my undercarriage down, but कुछ भी नहीं हुआ। तब जब मैं ये सब कर रहा था तो मेरा हेडअप भी फेल हो गया और मेरे को बाहर भी क्लियरली नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये सब चल रहा था जब सडनली मेरे कॉकपिट में बुस सी एक आवाज आई और पूरा कॉकपिट एक वाइट मिस्ट से भर गया। फिर मैंने उसको पहले सॉर्ट आउट किया, उसके लिए भी इमरजेंसी एक्शंस होते हैं, उसको सॉर्ट आउट किया। फिर थोड़ी देर बाद वो मिस्ट चला गया। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपने देखा है विंटर्स में क्या होता है, मिस्ट आ जाता है ना सामने गाड़ी में, तो वैसा हो गया। फिर मैंने उसको सॉर्ट आउट किया, बट अभी भी मेरे अंडरकैरेज नीचे नहीं थे, दे वर स्टिल अप। आई स्टिल हैड वन अप and there was no way I could have landed. So I was told, generate G. But because my undercarriage was down, I could not generate much of G because there are some limitations on the system. So मैंने 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कोशिश किया। मेरा एम था कि एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराना है, क्योंकि अगर मैं इसको लैंड नहीं करा पाऊंगा तो लोगों को यही पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या था इस जहाज में। In a fighter aircraft, you have an ejection seat, which you can use if you find the aircraft is out of your control. But that is always the last resort. So I kept trying, I kept pulling G, I kept pulling G. By this time, my fuel started reducing. I had just about fuel to land the aircraft on that go or just eject at night. When you eject, the aircraft will fall on some ground object, people will get injured there. You yourself will be ejecting and you don't know where you will fall. So it is a very risky proposition, but a safety available to a fighter pilot. So I kept trying. At the last moment, I realized that now I had to either leave the aircraft or do something different. So this time, मैंने और जोर से जी खींचा, and luckily the aircraft came down. The engine came, the undercarriage came down, and that's when I landed back. So this was my story. Thank you. Thank you, Group Captain Sur, and that was indeed very inspiring. रात के वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं किस मुसीबत की हालात में एक पायलट, अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए, डिसओरिएंटेशन का खतरा है। जहाज हो सकता है लैंड कर पाए, हो सकता है जैसा ग्रुप कैप्टन सूर ने बताया अंडर कैरेज डाउन ही ना हो। अगर डाउन ना हो तो फिर कैसे लैंड करेंगे? तो ये सारे संभावनाओं के बीच में ग्रुप कैप्टन सूर ने बिना संतुलन खोए, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग जो उन्हें ट्रेनिंग मिली हुई थी, उस ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए अपना जी जनरेट किया और उस जी जनरेशन के वजह से उनका तीसरा वाला अंडर कैरेज नीचे आ गया। और जब तीनों अंडर कैरेज नीचे आ गए तो ग्रुप कैप्टन सूर बड़े सेफ्टी के साथ अपना जहाज लैंड करा सके। और उनके इस साहसपूर्ण कार्य के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ग्रुप कैप्टन सूर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स ने वायुसेना मेडल गैलेंट्री से उन्हें नवाजा था। अब हमारे साथ हैं कमांडर सुप्रदीप, जिन्होंने एक और साहसपूर्ण कार्य किया था। और इस बार अब हम नेवी में किस तरह से रात को समुद्र में इन्होंने जान बचाई, उसके बारे में हम कमांडर सुप्रदीप से सुनना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। तो आज के दिन जब मैं आप सबके सामने बैठा हुआ हूं
तो आप लोगों को लगता होगा कि वाह, ये तो वर्दी पहन के बैठा हुआ है बंदा, और काश हम इनके जैसे वर्दी पहन सकें और देश की सेवा कर सकें, इज्जत कमा सकें, नाम कमा सकें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि आप लोगों को देख के मुझे कैसा लगता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपकी जगह पे मैं रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। हम बहुत मस्ती करते थे, स्कूल जाते थे, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी, और हमें लगता था कि वाह, यही ज़िंदगी है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वाह, काश मैं इन बच्चों की तरह रह सकता, जो स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, मम्मी पापा इनका ख्याल रखते हैं। और बीच में डांट वांट पड़ती है, लेकिन डांट तो मुझे अभी भी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप इस महान देश के नागरिक हैं, और आप एक ऐसे भारत में पैदा हुए, एक नए भारत में पैदा हुए हैं जिसका पूरे विश्व में नाम है। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, वेर एवर आई गो टू, बीइंग इन द नेवी, मुझे मौका मिला कि मैं काफ़ी देशों में जाने का मौका मुझे मिला, और वो हमारे देश को बहुत ही गर्व से देखते हैं। वो मानते हैं कि ये हमारा एक ऐसा देश है जो बाकी दुनिया को राह दिखाता रहा है, और अभी हम और भी तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को इस बात की मुबारक कि भैया आप नए भारत के एक बहुत ही होनहार बच्चे हो, और आपके सामने देश के लिए करने का बहुत सारा मौका है। हम लोग अपनी आधी जिंदगी काट चुके हैं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था, केंद्रीय विद्यालय मेरा स्कूल था, अलग अलग जगहों पे। और क्योंकि मेरे पिताजी फौज में थे, वो एयरफोर्स में थे, जैसे ग्रुप कैप्टन सूर थे, उनकी वर्दी देख के मुझे मेरे पिता की याद आती है अभी। और वो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, अलग अलग जगह पे वो जाते थे, और उनके साथ में हम भी ट्रांसफ़र होते थे, कभी बरेली, कभी आगरा, कभी ऊटी के पास में, कहीं बेगमपेट हैदराबाद के पास, बैंगलोर। तो उनके ट्रांसफ़र में हम भी जाते थे, तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि हर बार स्कूल बदलना पड़ता था। पर स्कूल बदलने के चक्कर में हमने बहुत सारे दोस्त बनाए, और बहुत बहुत जगहों पे बहुत बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। तो लाइफ में जब कुछ हमें पसंद नहीं भी होता है, फिर भी हमें उसको जी जान से करना चाहिए, उसको पूरे जोश के साथ करना चाहिए, क्योंकि किस चीज़ का कब फ़ायदा हो जाए ये हम अंदाज़ा उस टाइम पे नहीं लगा सकते हैं। 2002 में मैंने नेवी में एज एन ऑफिसर कमीशन हुआ। ये 4 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद 98 में 12th के बाद मैंने नेवल एकेडमी ज्वाइन करी, और 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद हम ऑफिसर कमीशन हुए बने। And having gotten commissioned, I did my first appointment on a small ship called a minesweeper. The name of the ship was Kakinada. और उसके बाद में ये विशाखापट्टनम का शिप था, और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र आया पोर्ट ब्लेयर। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अंडमान निकोबार को एक ज़माने में काला पानी कहते थे। तो मुझे लगा यार, ये कहाँ भेज दिया, बीच समंदर, इंडियन मेनलैंड से इतना दूर, और वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा। और उधर वहाँ पे एक शिप था, और उस शिप का मैं सेकंड इन कमांड था। 26 साल की मेरी उम्र थी, एंड एज अ यंग ऑफिसर बीइंग सेकंड इन कमांड ऑफ ए शिप वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ में जो सेलर्स थे, उनमें से ज़्यादातर लोग मेरे से बुजुर्ग थे, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा रखते थे, लेकिन वो मेरी ओर देखते थे जब भी कोई डिसीजन लेना होता था। तो इस जिम्मेदारी और एक जोश और एक जुनून के साथ में मैंने अपना कार्यभार संभाला उस शिप पे। एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, छोटा सा जहाज, बीच समंदर, बड़े से समंदर में एक छोटा सा जहाज होता था जिसमें 30-40 लोग रहते थे। उस जमाने में तो सब लड़के ही थे, लेकिन ये आज बड़े गर्व की बात है, आजकल लड़कियां भी एनडीए ज्वाइन करती हैं, लड़कियां भी सेलर्स भर्ती होने वाली हैं अग्निवीर के तौर पे। और ये मौका जो पहले हम मानते थे कि लड़के ही कर सकते हैं, आजकल लड़कियां भी करती हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि लड़कों से भी ज्यादा अच्छा काम लड़कियां कर पाएंगी। और एक रात की बात है, हम एक रात की बात है, अंधेरी सी रात थी, शायद चांद नहीं था उस रात को, और मैं अपने घर फोन कर रहा था, पोर्ट ब्लेयर से हैदराबाद, जहाँ मेरे माँ बाप रहते थे। मैं फोन कर रहा था और जेट्टी पे बात कर रहा था,
और मेरी नजर ऐसे ही समंदर की ओर थी। एकदम अंधेरा सा काला समंदर था, काला पानी था, जिसे अंडमान में समंदर जैसे काला पानी कहते हैं। और मुझे अचानक से दिखा कि एक बहुत बड़ा आग का गोला एकदम विस्फोट सा हुआ है। I saw this huge ball of fire, and a distinct 1 or 2 seconds after that, I felt that there was an explosion. I heard a huge blast. मुझे जो फिजिक्स के टीचर्स बताते थे कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, वो मुझे उस दिन समझ में आया कि भैया मुझे दिखाई तो पहले दिया एक बड़ा सा पानी के बीचों बीच आग का गोला, और उसके बाद 2 सेकंड के बाद मुझे आवाज सुनाई दी और एक विस्फोट सा मुझे आभास हुआ। और अब मैं क्या करता, मेरे सीओ साहब तो रात का समय था, वो अपने घर अपने परिवार के पास चले गए थे, और मैंने सोचा कि अगर कुछ करना है तो मैंने ही करना है अभी। नाउ कमांड रेस्ट विथ मी, अ यंग 26-year-old बॉय, एंड मैं जल्दी से अपने जहाज के अंदर भागा। मैं अपने केबिन में जाके मैं जल्दी से अपने गेम्स रिग मतलब अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रहा था, क्योंकि मैं जिस वर्दी में आज हूँ वैसी एक वर्दी मैंने पहनी हुई थी। और मैंने वहां से एक मोटरोला उठाया और अपने जहाज में लोगों को बताया कि भाई हमारी जो जेमिनी है, जेमिनी एक छोटी सी बोट होती है, उसमें 2-4 लोग बैठ सकते हैं आराम से ज्यादा 6-7 लोग बैठ सकते हैं। तो जहाज में जो जेमिनी थी उसको जल्दी से जल्दी पानी में उतारा जाए, जो ड्यूटी स्टाफ करे, और जो ड्यूटी ड्राइवर है वो जेमिनी को उस विस्फोट की ओर जाने की उसको तैयार करे। तो 3-4 मिनट में मेरा पूरा क्रू बिल्कुल एकजुट होकर उन्होंने जल्दी से जेमिनी को पानी में उतारा और रेडीनेस रिपोर्ट करी कि सर जेमिनी तैयार है पानी में जाने के लिए। मेरे शिप में जो नेविगेशन वाले लोग थे उन्होंने जल्दी से मुझे बताया कि सर मोटा मोटा इस इलाके में वो विस्फोट हुआ है, जो हमने आंखों से देखा और हमें आभास है कि इस इलाके में विस्फोट हुआ है। हमारे शिप का एक कुक था, वो बंदा 2 बोतल पानी और 2 रोटियां लेके आ गया हमारे पास में, और उसने कहा कि सर अगर कहीं पानी की जरूरत हो तो ये आप लीजिए। और जेमिनी की का आउटबोर्ड मोटर जो है, जो इंजन जो है, उसको स्टार्ट कर दिया ड्राइवर ने, और कम्युनिकेशन सेलर था उसने आके 2 मोटरोला में पकड़ा दिए कि सर ये लो पहला मोटरोला, अगर इसकी बैटरी खत्म हो गई तो ये रहा दूसरा। और जो मेडिकल सेलर था हमारे जहाज में, उसने बोला कि सर मैं जल्द से जल्द अपनी तैयारी करता हूं और एम्बुलेंस को बुलवाता हूं। तो आप देख सकोगे कि जाने के लिए तो सिर्फ मैं और मेरा एक ड्राइवर तैयार थे, लेकिन पूरा जहाज एकजुट होकर एक साथ एक सांस में ऐसे रिएक्ट किया और हमें उन्होंने रवाना किया। विस्फोट होने के 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर हम विस्फोट के पास में जा रहे थे। जैसे ही हम बीच समंदर, अंधेरा था चारों तरफ, हम लोग टॉर्च से थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि चारों तरफ धुएं की बदबू आ रही है, कुछ जलने की बदबू, प्लास्टिक जल रहा है, लकड़ी जल रही है, और काफी तेल पानी में रिस चुका था और पानी में फैला हुआ था और उसमें आग लगी हुई थी। तो बीच समंदर आप देख रहे हो कि आग की लपटें भी हैं पानी के ऊपर। हम उस बीच में से अपनी रबर की जो छोटी सी जेमिनी है उसको हम मैनूवर करते रहे, धीरे धीरे से हमने अपना रास्ता खोजा एंड जा रहे थे। कुछ दूध के पैकेट हमें दिखाई दे रहे थे, कुछ पेपर, कुछ बैग, कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन मीट और खाने पीने की चीजें, चॉकलेट के पैकेट्स, रैपर्स। पर चारों तरफ आग की लपटों के बीच में हमें अपना रास्ता खोजना था। धुएं का आभास था, बहुत ज्यादा धुआं था, चारों तरफ खांसी हो रही थी। हम लोग गए, हमें लगा कि काफी बड़ा जहाज है जो भी है, क्योंकि इतना सारा सामान, इतना सारा तेल जल रहा था पानी में, सामान फ्लोट कर रहा था। तो हमें लगा कि हो ना हो इसमें कोई ना कोई लोग तो होंगे ही होंगे। तो हम भाग के गए, भाग के मतलब अपने बोट को हमने तेजी से दौड़ाया, और काफी दूर जहां पे विस्फोट हुआ उसके काफी दूर हमें एक आदमी नजर आया। बुजुर्ग था, करीब 50-60 साल का आदमी होगा, और किसी तरह हमने उसको अपने जहाज में लिया। बिल्कुल हक्का बक्का हुआ था वो आदमी, एकदम shaken up था, he was absolutely shaken up, he was disoriented, and we calmed him down and we asked him कि भाई हुआ क्या है। वो हमें बाद में पता चला कि वो एक जर्मन था, उसकी अंग्रेजी भी टूटी फूटी थी, हिंदी तो वो बिल्कुल जानता ही नहीं था। तो उसने बोला देयर आर 3 बॉयज इन द बोट। तो मैंने कहा एक तो आप हो, तो 2 और लोग हैं। फिर उसने बोला यस 2 मोर, तो 2 और लोगों को हमने खोजना था। उसी समय अंडमान निकोबार पुलिस की एक स्पीड बोट आई और उन्होंने देखा अरे फौज तो है यहाँ पे,
तो वो वापस जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, नेवी इज हियर, वी आर गोइंग। तो हमने बोला अजय रुक जाओ भाई, एक हमारे पास सर्वाइवर है, इसको आप लेके जाइए वापस, इसकी जान बचाइए, इसके काफी बर्न्स थे, काफी चोटें आई थी, खून निकल रहा था सर से। तो हमने उसको उस बोट में, स्पीड बोट में ट्रांसफर किया। फिर मैंने पूछा कि भाई कहाँ लेके जाओगे इसको? तो उन्होंने बोला हम इसको सिविल जेट्टी लेके जाएंगे। हमने फिर इस पुलिस बोट को बोला वो देखिए जहाँ पे हमारा एक शिप दिखाई दे रहा है। और मोटरोला पे मैंने बोला कि आप एक टॉर्च लाइट, एक फ्लैश लाइट हमारी तरफ इंडिकेट करिए। तो उन्होंने फ्लैश लाइट इंडिकेट किया हमारी तरफ, तो बोला जो लाइट चमक रही है आप उसकी तरफ लेके जाइए। तो पुलिस वालों ने बोला वहाँ हमारे जाना अलाउड नहीं है, वो तो नेवी का एरिया है। तो हमने बोला कि हमारी क्रू वेट कर रही है आपके लिए, एम्बुलेंस जेट्टी पे आया हुआ है, वेट कर रहा है एम्बुलेंस। अगर आप सिविल जेट्टी पे जाओगे, दूरी होगी, समय लगेगा, तो आप जल्द से जल्द उनको हमारी जेट्टी पे लेके जाओ और उसको वहीं से इवैक्यूएट किया जाएगा। तो वो लोग पूरी तेजी से उन्होंने उनको इवैक्यूएट किया। तो सिविल अथॉरिटीज भी एंगेज हो गई इस पूरे ऑपरेशन में। और फिर हमें था कि किसी तरह हमने इन दोनों लोगों को ढूंढना है। अंधेरी रात, एक बंदा किसी तरह जो तैर रहा था वो तो हमें मिला, लेकिन बाकी दो कहाँ हैं? काफी देर ढूंढने के बाद में मुझे लगा कि शायद हमें आज इन दोनों लोगों को गंवाना ही पड़ेगा। और हम देख रहे थे पानी में कुछ चीजें हैं, लेकिन एक चीज मुझे लगी कि यार ये दूध का पैकेट लग रहा है, सफेद है, लेकिन ये पैकेट तो नहीं है। तो हम जब उसके पास में गए तो हमें अंदेशा हुआ ये आदमी का गला है। तो वो आदमी का, उसकी नाक और सर और मुंह उसका पानी में था, सिर्फ उसके कंधे और गले का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा था। तो हमें लगा यार ये तो डूब रहा है, ये डूबना नहीं, यही इसकी खुशकिस्मती है। तो हमने उसको ऊपर खींचने की कोशिश करी, बेहोश था बंदा, पूरी जान लगा दी मैंने और मेरे ड्राइवर ने, लेकिन हम उसको ऊपर खींच ही नहीं पाए। फिर मैं पानी में गया, उसको नीचे से धकेला, ऊपर से मेरे ड्राइवर ने खींचने की कोशिश करी, किसी तरह हम ऊपर लेके आए। बंदे की नब्ज थी, उसकी सांस चल रही थी, बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन ही वाज स्टिल ब्रीदिंग। वी वर वेरी हैप्पी दैट समहाउ एटलीस्ट ही इज अलाइव एंड वी स्टार्टेड टू रिससिटेट हिम। हमको जब हम 11th और 12th में थे, हमको सीपीआर के बारे में बताया था। एक डॉक्टर ने आके हमारे स्कूल में हमें सीपीआर, माउथ टू माउथ रिससिटेशन, इसके बारे में हमें किसी ने बताया था। उस टाइम तो हमने कुछ ध्यान दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इस बंदे को हमने बचाना है तो वो जो थोड़ा याद है मुझे, और उसके बाद में एकेडमी में जो हमको ज़्यादा सिखाया गया, ये फर्स्ट एड टेक्निक सीपीआर की मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसको हमने सीपीआर दी और 4-5 मिनट के बाद में वो खांसा, उल्टी करी उसने, और किसी तरह से वो होश में तो नहीं आया, लेकिन वो सांस आराम से लेने लगा। तो इसी टाइम पे मेरे शिप के क्रू ने स्पीड बोट को वापस हमारे पास में भेजा। अंडमान पुलिस की स्पीड बोट वापस आई, तो इस बंदे को भी हमने किसी तरह से उस स्पीड बोट में ट्रांसफर किया और ये भी वापस चला गया। और हम उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह इसकी जान बचे, और हमने जो अभी तक काम किया है, इसको अगर इसकी जान नहीं बचेगी तो कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, तो किसी तरह इसकी जान बच जाए। तो इस दुआ के साथ हम लोग तीसरे बंदे को ढूंढना शुरू किए, और उसी टाइम पे हमने देखा कि एक बड़े छपाक की बड़ी आवाज आई, और जो एक यॉट था, बाद में हमें पता चला कि एक यॉट है। यॉट मतलब जैसे आप फिल्मों में देखते हो, और एक शिप जैसा होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मास्ट होता है जिसपे सेलिंग का गियर उस पे लगता है, सेल्स लगती हैं। तो वो सेलिंग का यॉट था, और ये बाद में हमें पता चला कि ये मलेशिया से यहाँ तक आया हुआ है। और ये यॉट में पानी भर जाने की वजह से एक टैंक में ये अबाउट 45-50 डिग्री टिल्ट हो गया था। और जब ये टिल्ट हुआ तो हमें ये छपाक की आवाज़ आई और लहरों में इजाफा हुआ था। तो हमें लगा कि यार ये, तो हमारी नज़र जब उसकी ओर गई तो हमने देखा अरे यार ये तो इतना बड़ा यॉट है, हम अपने काम में इतने मशरूफ हो गए हैं कि हमने इसको रियलाइज ही नहीं किया कि हमारे को दिख रहा है, ओझल है लेकिन दिखाई तो दे रहा है। तो हम यॉट को देख रहे थे, उसके पास में जाने की हमने कोशिश करी, आग ज़्यादा लगी हुई थी। और हम जो यॉट के जो पोर्ट होल्स हैं, जो खिड़कियां जिसे हम कहेंगे, तो पोर्ट होल में से मैंने देखा कि अंदर कुछ नज़र आ रहा है, कि अंदर कुछ तो हलचल चल रही है। तो पोर्ट होल के सामने से कोई इंसान ही लगा मुझे, बाल जल रहे थे, कपड़े जल रहे थे। तो पोर्ट होल में से दिखता, फिर गायब हो जाता, फिर दूसरे पोर्ट होल में से दिखता, फिर गायब हो जाता। तो मुझे लगा हो ना हो अंदर कोई है,
मैंने जब अपने ड्राइवर को दिखाया तो उसकी नज़र भी उसी पे थी। उसने कहा कि सर अंदर एक आदमी है। तो हमने सोचा कि यार अब ये आदमी है, जिंदा है, उसे तो बचाना है, लेकिन उसके लिए यॉट पे चढ़ना पड़ेगा। एक विस्फोट ऑलरेडी हो चुका है, यॉट के पास में और ज़्यादा तेल है, उसमें और ज़्यादा आग लगी हुई है। बट मैंने फिर बोला कि चलो अपनी जेमिनी को यॉट के पास लेके चलते हैं। हम पास गए तो मुझे सडनली मेरे मन में ये बात खनकी कि भाई ये 50 डिग्री तो ऑलरेडी टिल्ट हो रखा है, वो भी हमारी तरफ। अगर 40 डिग्री और टिल्ट होगा तो उसका जो मास्ट है हमारी जेमिनी को डैमेज कर देगा। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई तू यहीं पे रुक जा, करीब 100 मीटर की दूरी पे यॉट है, मैं तैर के निकल जाता हूँ। और आग लगी हुई है पानी में, कहीं हमारा जो जेमिनी है ये भी रबर का बना हुआ है, अगर इसमें आग थोड़ी भी लगेगी तो हवा इसकी निकल जाएगी और हम यहाँ पे हमें फिर मोटरोला पे बताना पड़ेगा कि भाई हमें बचाने आओ, हम किसी और को बचाने आए हैं और हमें बचाने कोई और आना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहीं रुक जा। इसने बोला सर ड्राइवर तो मैं हूँ, लेकिन तो आप यहाँ पे जेमिनी में रुको, मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा दोस्त ड्राइवर आप हो, आप तो चले जाओगे, लेकिन जेमिनी चलाना मेरे जितना आपको, मेरे से तो आप कहीं ज़्यादा आपको तजुर्बा है और मेरे से आप अच्छा जेमिनी कंट्रोल कर पाते हो। कहीं ये जेमिनी रुक गई तो शायद मुझसे स्टार्ट भी ना हो, तो आप यहाँ रुको, मैं निकल रहा हूँ। और इसके साथ मैं पानी में कूदा और करीब 100-150 मीटर तैर के उस यॉट के पास में पहुँचा। और यॉट क्योंकि टिल्टेड थी तो किसी तरह मैं ऊपर चढ़ भी पाया आराम से। जब ऊपर मैं पहुँचा तो देखा कि आग लगी हुई है, काफ़ी धुआं है और ये बंदा यॉट के लोअर डेक पे है। मतलब मुझे यॉट को अगर हम देखें तो ऊपर मैं पहुंच गया था ऊपरी सतह पे, वहां से मुझे उसकी निचली सतह में जहां पे ये बंदा फंसा है वहां जाना था। तो मैं सीढ़ियां ढूंढी, सीढ़ियां मिल गई, मैं नीचे चला गया और जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी वो खुले नहीं। तो मैंने अपने कंधे से टांगों से लात मारने की कोशिश करी। हिंदी फिल्में हमने भी देखी थी, वो एक लात मारता है हीरो और दरवाज़ा ठक से खुल जाता था, पर ये काफ़ी बार कोशिश करने के बावजूद ये खुले नहीं। तो 3-4 बार और कंधे पे से जोर लगाया, ये किया वो किया और किसी तरह से वो दरवाज़ा टूटा और मैं अंदर घुसा। ये बंदा अंदर ही था, मैंने उसको पकड़ा, वो जिंदा ही था, जला हुआ था बुरी तरह। उसको जैसे ही मैंने जकड़ा अपने हाथों से, उसे पकड़ा तो वो बेहोश हो गया। शायद उसे अंदाज़ा लग गया था कि अब मैं शायद बच जाऊंगा, तो उसने वहीं एक तरह से दम तोड़ दिया और मेरे हाथों में ही वो ढेर हो गया। तो किसी तरह मैंने उसको कंधे पे चढ़ाया। हम लोग जब एकेडमी में ट्रेन करते थे तो हमें हमारे जो पीटी के उस्ताद थे जो ट्रेनिंग कराते थे वो हमें कैमल कैरी और फायरमैन लिफ्ट और ये सब चीज़ें हमें एज ए पनिशमेंट कराते थे, और वो उस दिन काम आ गई। मैंने उसको अपने कंधे पे उठाया एंड फायरमैन लिफ्ट के साथ में स्टेयरकेस तक पहुंचा, सीढ़ियों तक। व्हेन आई रीच द स्टेयरकेस, एक आदमी को कंधे पे उठा के वो टिल्टेड बोट में किसी तरह मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचा और उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसको लेके तो मैं उतर नहीं पाऊंगा पानी में। तो मैंने उसको पानी में फेंक दिया और उसके पीछे पीछे मैं भी कूद गया और उसको लेके मैं जेमिनी की तरफ मैं ढूंढ रहा था। तब मेरे ड्राइवर ने अपनी जेमिनी को अपनी जान की बाजी लगा के और रिस्क को न सीरियसली लेते हुए वो हमारे पास आया। जेमिनी में हमने इसको चढ़ाया और हम शिप के पास अपने पहुंच गए और एम्बुलेंस तीसरे ट्रिप के लिए भी वेट कर रही थी। मेरे शिप की क्रू बड़ी खुश थी, हमें लगा कि आज का काम हो गया ख़त्म। 3 लोग थे, तीनों बच गए और आज की रात हम आराम से अब जाके सोएंगे और कल के दिन कल का काम कल करेंगे। बट उस टाइम पे काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हमारे शिप पे आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे 3-4 ऐसे सवाल किए जिसका जवाब मेरे पास था नहीं। उन्होंने कहा क्या ये शिप अभी भी लंगर लगा के वहीं पर है या ये पानी की सतह पे ड्रिफ्ट कर रही है? क्या ये किस ओर ड्रिफ्ट कर रही है? क्या ये ज़मीन की तरफ आ रही है या समंदर की तरफ जा रही है? तो मैंने कहा कि सर ये सब तो मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये ड्रिफ्ट कर रही हो, क्योंकि रडार जब हमने चालू किया तो ये लग रहा है कि एक जगह स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे लंगर लगा के नहीं है, तो ये लंगर इसका टूट गया है और ये ड्रिफ्ट कर रही है। और खुदा न खास्ता ये अगर किसी चैनल की तरफ जहाँ से शिप्स अंदर आती हैं और हार्बर के बंदरगाह के बाहर जाती हैं, अगर वहाँ जाके अगर ये डूब गया तो ये पोर्ट ब्लेयर का जो चैनल है, पोर्ट ब्लेयर का जो हार्बर है, ये ब्लॉक हो जाएगा। काफ़ी दिनों के लिए हो सकता है ब्लॉक रहे। अगर ये जाके किसी और शिप से जाके टकराएगा तो उसको डैमेज करेगा। तो आपने इसको टो करके किसी तरह खींच के वापस लेके आना है। तो मैंने कहा कि सर जेमिनी से इस यॉट को जो मलेशिया से सेल करके आया है, इसको खींचना तो ऐसा हुआ जैसे मैं साइकिल पे किसी रोड रोलर को खींच रहा हूँ, तो ये तो होने से रहा। तो उन्होंने बोला हम एक वर्क बोट भेजेंगे।
तो उन्होंने जल्द से जल्द हमारे पीछे पीछे एक वर्क बोट भेजी। वर्क बोट एक नॉर्मल बोट है जिसमें 20-30 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो उसने कहा कि सर हमारे पास तो रस्सियां ही नहीं, हम खींचेंगे कैसे? तो ये तो फर्स्ट एड के तौर पे वर्क बोट आई हुई थी। तो मैं वापस मुझे याद था कि इस यॉट पे रस्सियां ऊपर हैं क्योंकि ये सेलिंग यॉट है। तो वापस चढ़ा, जो रस्सियां हैं उसको मैंने वर्क बोट तक तैर के पास करी और वर्क बोट से बहुत धीरे धीरे से खींचना शुरू किया। हमने खींचना शुरू किया, तब तक एक टग आई। टग इज अ स्पेशलाइज्ड शिप जो दूसरे शिप्स को खींचती धकेलती है। तो वो आई, उसकी रस्सियों से हमने फिर खींचना शुरू किया। तब टग के मास्टर ने, जो काफी बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा कि सर खुदा न खास्ता अगर ये जहाज डूब गया तो ये हमारे टग को और इस वर्क बोट को भी लेके डूबेगा। तो मैंने कहा कि आपके पास में कोई चाकू या कोई शार्प आइटम अगर है तो आप मुझे दें और मैं इस यॉट पे ही बैठा रहूंगा। अगर ये डूबने लगेगा तो मैं ये रस्सी काट दूंगा, आप आगे निकल जाना, ये जहाज डूबेगा और मैं तैरता हुआ, मुझे फिर उठा जरूर लेना। तो इसके साथ में करीब 1-1.5 घंटा लगा। हम पास आए और हमने ये इस शिप को अपनी जेट्टी पे ही थोड़ा दूर, बाकी शिप से दूर उसको बांधा और थोड़ा सा और फायर फाइटिंग एफर्ट बाकी शिप्स ने मिलके और बाकी लोगों ने मिलके किया और आग बुझ गई और वो जहाज़ वहीं पे अगले दिन तक वहीं पे रहा। और हम जाके सो गए। सुबह सुबह जब किसी ने मुझे उठाया तो मेरा ये था कि मैं जाऊं और इन लोगों को जाके देखूं कि भैया ये लोग बचे हैं कि नहीं। मेरे सीओ से मैंने कहा, सीओ ने कहा हाँ ज़रूर देखना चाहिए, और हमें तो ये लगा कि शायद ये बच जाएंगे। तो मैं जब तक हॉस्पिटल गया तो तब मुझे खबर मिली कि इनको रातों रात इवैक्यूएट करा गया है। तो रातों रात जर्मन एम्बेसी ने एक एयरक्राफ्ट, एयर एम्बुलेंस भेजा था और फर्स्ट फ्लाइट के साथ सुबह सुबह इनको इवैक्यूएट किया। और ये ज़रूर बता दिया कि फीडबैक ज़रूर है कि ये तीनों बच जाएंगे। एक को ज़्यादा चोटें आई हैं और इसके साथ में वो रात ख़त्म हुई। और आई कैन ओनली टेल यू दैट दिस इज जस्ट वन ऑफ मेनी मेनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स that have taken place। एंड अगर आप कल फौज में भर्ती होते हैं, आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, all of you have a great opportunity to serve this great nation and be part of the success story that India is। एंड आप जो भी करें अच्छे से करें, दिल लगा के करें। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप फौज में आते हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो हमें बहुत गर्व होगा और आपको अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, माँ बाप का नाम, अपने गली मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम रोशन करने का बहुत मौका देती है फौज। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार है कि आप फौज में आए, भर्ती हों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, और अपना नाम रोशन करें और हमारे देश को जहां हम आज हैं उससे कई ज़्यादा ऊंचाइयों की ओर लेके जाएं। आपने हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कमांडर सुप्रदीप। और ये बहुत ही प्रेरणादायक आपके साथ जो किस्सा हुआ था आपने वो बताया। मेरे को दो बात आपकी खास अच्छी लगी। एक, कोई भी काम करने के लिए बड़े छोटी या कोई उम्र नहीं होती है। कमांडर सुप्रदीप ने जब ये एक्शन किया था, इन्होंने बताया कि ये शायद 26 साल के थे। हमारे यहाँ जो 26 जनवरी को अवार्ड्स मिलते हैं उसमें बच्चों को भी मिलते हैं। जो बच्चे होते हैं उन्हें कर्तव्य पथ पे आते हैं और राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिला जाता है। तो कोई उम्र नहीं है साहसपूर्ण कार्य करने की। आप लोग सब कभी ये मौका मिले तो मौका गंवाना नहीं। दूसरा, जैसे कमांडर सुप्रदीप बता रहे थे, हम सबको आपका फौज में ज्वाइन करने का हम इंतजार कर रहे हैं। और कभी मौका मिले किसी भी आर्म में, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, आप ज्वाइन करें। और खासकर जो लड़कियां हैं, और अभी ये मौका उन्हें एनडीए, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी हर जगह मिल गया है, हर जगह वैकेंसीज हैं। आप इस वैकेंसीज को यूटिलाइज करें और एडमिशन लेने की कोशिश करें। अब क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टूडेंट हैं, एक नाजिया खातून, क्लास 12 की स्टूडेंट है, GGSSS प्रेमनगर। नाजिया खातून, अपना क्वेश्चन पूछिए। Hello, good afternoon everyone.
हेलो हाँ हाँ आज सुनाई दे रहा है, आप क्वेश्चन पूछे नाजिया। सर माय क्वेरी, व्हाट आर द करियर ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन इन डिफेंस सर्विस? Career objectives. Okay. Hi Nazia, this is Anindo. Okay, Good I'll afternoon, sir. restrict myself. Can you hear us? Nazia, can you hear us? If you can hear us, just raise your hand. नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सर, आवाज आ रही है बट कट रही है आपकी आवाज थोड़ी। हमारी ठीक है, Might be, not at all. सबके लिए। Hi Nazia, with us Hello. now? Yeah, are you with us? ओके सर। सर Yeah. सर माय So, क्वेरी, Nazia, what are the career objective for service? Okay, we've understood your question. You basically want to know what are the career options for women in the armed forces. What I'll do is I will restrict. इनकी आवाज और म्यूट कर दो, अब इनकी आवाज म्यूट कर दो। Okay, what I'll do is I'll restrict myself to the Air Force. Okay, in the Air Force, presently we have around 13% of the officer force as women officers. Okay, we have close to 120 plus officers, women officers who are flying. And we have 15 to 16 women officers who are flying fighter aircraft. Okay. The Air Force is clear that there is no distinction between boys and girls when we induct them. Okay. The career opportunities for both are exactly the same. The way the boys are treated, the girls will be treated the same way. The career opportunities, what the boys get, the girls also get the same. Okay. That's it. ओके, ग्रुप कैप्टन सोर ने एयरफोर्स में आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करी। अगर आर्मी में देखा जाए तो आर्मी में भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स के लिए काफी खुली हुई हैं। ये करीब 1990s बिगनिंग में ऑफिसर लेवल एंट्री शुरू हुई थी और शुरू में हमने कुछ ही सर्विसेज में गर्ल्स की एंट्री परमिट करी थी, जिसमें जैक ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच और सर्विसेज जैसे आर्मी सप्लाई कोर, ऑर्डिनेंस कोर, इसमें वैकेंसीज थी। धीरे धीरे जैसे फौज का एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया तो लेडीज और गर्ल्स को आर्म्स में भी, जो हम फाइटिंग फोर्स बोलते हैं, जैसे इंजीनियर्स है, एयर डिफेंस है, इसमें भी भर्ती शुरू हो गई थी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी तो वैकेंसीज सैनिक स्कूल और आरएमसी में क्लास 6 से आप इन स्कूल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में एनडीए में वैकेंसीज और नेवल एकेडमी में भी वैकेंसीज हैं और इसके बाद आप कमीशन होकर किसी भी आर्म और सर्विस में जा सकते हैं। मैं एक और बात जो आपको बताना चाहूंगा, अभी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक में भी इंडियन आर्मी में वैकेंसीज आ गई हैं और वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में गर्ल्स के 2 या 3 बैच पास आउट हो गए हैं और ये ऑफिसर लेवल से नीचे वाले जो सब रैंक्स हैं उसमें भी भर्ती शुरू हो गई। अब मैं कमांडर सुप्रदीप से जानना चाहूंगा नेवी में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज। बच्चों, ये मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अब से मतलब 2023 अगले साल से इंडियन नेवी में
हर ब्रांच में, एवरी ब्रांच ऑफ द इंडियन नेवी विमेन कैन ऑल्सो ज्वाइन, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे आर्म्स में हो। काफी पहले हमने लड़कियों को एजुकेशन, लॉ, लॉजिस्टिक्स, आर्ममेंट इंस्पेक्टोरेट इनमें लेना शुरू कर दिया था, लेकिन काफी ऐसे फाइटिंग ब्रांचेस थे, जनरल सर्विस ब्रांचेस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, गनरी, जैसे मैं गनरी ऑफिसर हूं, और कम्युनिकेशंस, एनडी, एग्जीक्यूटिव, इनमें लड़कियों को ज्वाइन करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसके तहत हम अभी लड़कियों को ऑफिसर के हर कार्डर और हर ब्रांच में हम अभी लेना शुरू कर देंगे। और हम लोग मानते थे जब मैं भर्ती हुआ था कि गनरी ऑफिसर सिर्फ लड़के बन सकते हैं, शिप के कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ एक लड़की बन सकती है, शिप की सेकंड इन कमांड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक लड़का ही बन सकता है, लड़कियां नहीं बन सकती हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हर ब्रांच और हर सेक्शन ऑफ द ऑफिसर कम्युनिटी में लड़कियां भी ऑफिसर बन के किसी भी ब्रांच को ज्वाइन कर सकती हैं। वो दिन भी मैं अपने लाइफ टाइम में मैं देखूंगा, क्योंकि अभी भर्ती अगर अगले साल होंगी तो जब तक वो उतना तजुर्बा हासिल करेंगी और सीनियर हो जाएंगी कि शिप को कमांड करने के लिए भी लड़कियां तैयार हो जाएंगी। दूसरा, इंडियन नेवी अग्निवीर के पहले बैच के साथ ही लड़कियों को भी अग्निवीर बनने का मौका दे रही है। तो आर्स इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो 2022 नवंबर में जब जो भर्ती होगी, पहली भर्ती अग्निवीरों की, तो नेवी में एज अ सेलर हर ब्रांच में मतलब फ्रॉम मैट्रिक एंट्री टू नॉन टू सीनियर सेकेंडरी एंट्री, दैट इज 12वीं के बाद और 10वीं के बाद भी लड़कियों के साथ में लड़कियां भी भर्ती हो पाएंगी। गनरी सेलर, कुक्स, स्टीवर्ड और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, हर ब्रांच में लड़कियां भी एज अ सेलर, एज एन ऑफिसर, हर ब्रांच, हर सेक्शन में ज्वाइन कर पाएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं लोगों से कहूँगा, लड़कियों से खास तौर पे, कि वे बढ़ चढ़ कर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और ये साबित कर दें कि लड़कियां लड़कों से किसी भी विषय में किसी भी तरीके से कम नहीं है। लेकिन मुझे वो करेक्ट प्रूव करें, मैं मानता हूं कि वो लड़कियों से कई अच्छी हैं हर तरीके में। थैंक यू कमांडर सुप्रदीप। अब हम क्वेश्चन लेंगे एयरफोर्स स्कूल 9 BRD चंदन नगर पुणे से शिवसना। A very good afternoon to all the Gallantry Award winners. I'm Shiv Sana of Air Force School Chandan Nagar, 9 BRD, Pune. It would be my honor to ask some questions about the armed forces. My questions will be for Brigadier M. Shri Kumar Shaurya Chakra. First of all, I would like to say that I appreciate all the things that you do for the country and the courage that you possess. One of the main pillars of the Indian Army are its traditions and cultures, which strengthens it. But lately, I believe that its traditions are being diluted with time. Do you think the dilutions of these traditions will hamper the performance of the Indian Army, and why? Thank you. A very relevant question. You're Gaurav. No, sir, I'm Shiv. Okay. A very relevant question, I would say. I would not agree with you if on this statement that the culture and traditions of the armed forces are being diluted. वो सही नहीं है ये बोलना कि ट्रेडिशंस और कल्चर जो है डाइल्यूट होए जा रहे हैं। ट्रेडिशंस का मतलब है जो हम कुछ चीज़ें जो पुराने टाइम से करे आ रहे हैं और वो चीज़ें जो है सब एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ पहले से ही करे आ रहे हैं, तो उसको हम एक ट्रेडिशन के तौर में मानते हैं। और आर्मी के यूनिट्स, जैसे आपको जानते हैं कि आर्मी यूनिट्स, कुछ यूनिट्स है जो 200-250-300 साल पुराने यूनिट्स भी है, और उनकी ट्रेडिशंस, कुछ चीज़ें जो है पुराने टाइम से जो ये जो आर्म फोर्सेस है, ये यूनिट्स है, ये पुराने जो किंग्स थे, उनके आर्मी थे, वो ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिश ने अपने ब्रिटिश इंडियन आर्मी बना दिया उसको, तो कुछ ट्रेडिशन तब से शुरू चले आ रहे हैं। बट ट्रेडिशंस अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ट्रेडिशंस शुड बी अलाइव, दैट मीन्स ट्रेडिशंस हैव टू चेंज विद टाइम। जो ट्रेडिशंस टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं वो
रिग्रेसिव माना जाता है, यानी कि वो आपकी फंक्शनल एफिशिएंसी को कम करते हैं। तो ऐसे जो ट्रेडिशंस है वो चेंज किया जाना चाहिए और वो चेंज होता भी है। तो एक आर्म फोर्सेस में जो यूनिट्स है वो प्रोग्रेसिवली जो है इन ट्रेडिशंस को अपने हिसाब से और टाइम के हिसाब से चेंज किए करते आ रहे हैं, और उसको कुछ लोग समझते हैं कि ट्रेडिशंस को डाइल्यूट कर रहे हैं, वो नहीं है, सही नहीं है वो। तो ये मैं नहीं मानना चाहता हूँ कि ट्रेडिशंस डाइल्यूट हो रहे हैं। ट्रेडिशंस कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो रिग्रेसिव ट्रेडिशंस है, जो ट्रेडिशंस जो आपकी फंक्शनल एफिशिएंसी को कम कर रहे हैं, ऐसी ट्रेडिशंस को चेंज किया जा रहा है। सो वो है जो नॉर्मल इस पे हो रहे हैं। दूसरी बात है कल्चर। कल्चर जो आर्म फोर्सेस की जो कल्चर है, वो जो अपनी सोसाइटी की जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, वही जो कल्चर है इंडियन आर्म फोर्सेस में भी। हमारे इसमें काफ़ी रिलीजियस ट्रेडिशंस, काफ़ी सोसाइटी की जो ट्रेडिशंस है वो गॉड फेयरिंग लोग हैं, और हम सेक्युलर है, हर धर्म को मानते हैं। तो हर धर्म की जो कल्चर है, हर धर्म की जो ट्रेडिशंस है, हर धर्म की जो प्रोसीजर्स है, वो फौज में अलग अलग यूनिट में फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें इनबिल्ड है, हमारी जो यूनिट्स में इनबिल्ड है। हाँ, जो नए जवान आते हैं, नए जो अलग अलग जगह से आते हैं, उनको जिस यूनिट में ज्वाइन करते हैं, उस यूनिट के जो ट्रेडिशंस और उस यूनिट के जो पर्टिकुलर कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो मान लेते हैं, और उसके साथ वो सहन हो जाते हैं, और उसके साथ वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस हिसाब से वो जैसे मैं हूँ, मैं खुद एक केरलाइट हूँ, मैं कमीशन हुआ था सिख रेजिमेंट में। सो जो सिख ट्रेडिशंस है वो सारे जो मैं अपने आप जो है उसको मान लेता हूँ और मैं उसको फॉलो करता हूँ। इतनी की बात है कि जो जितनी बार मैंने गुरुद्वारा विजिट किया, उतनी बार तो मैं मंदिर गया नहीं हूँ। मतलब कई गुना कई कई टाइम कई ज़्यादा टाइम मैं गुरुद्वारा में अटेंड किया हूँ। गुरुद्वारा की पूरी ट्रेडिशंस, गुरुद्वारा में जो कैसे हम कीर्तन करते हैं, कैसे उसकी जो प्रोसीजर्स है, वो सब मैं 100% जानता हूँ। तो वो क्योंकि मैं इस यूनिट में पिछले 30 साल से मैं उसी यूनिट में हूँ, और उसी यूनिट की कल्चर जो मेरी इनबिल्ट हो गया है। तो ऐसी चीज़ें जो है अपने आप जो है एक कोई सी यूनिट में आ जाता है, वो अपने आप उसको इन्वाइब करता है और उसी के साथ वो जीता है। तो ये मानना सही नहीं है कि ट्रेडिशंस और कल्चर डाइल्यूट हो रहे हैं। हाँ, चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ें जो है अगर रिग्रेसिव है उसको चेंज किया जा रहा है। Otherwise, the culture and traditions of the armed forces are very much alive, and they will continue to be alive till the time we are there as a force. I hope I am clear. Thank you, sir, for the question. So the other question for you from my side is, in the present time, the younger generation are not very motivated to join the armed forces and provide selfless service to the country. What are your views on this, sir? Again, I would say I would not agree with you in saying that the younger generation is not motivated, or not motivated to join the armed forces and continue with or give a selfless service to the nation. It is only that आज के टाइम पे यंगर जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है. There are for a student who is in class 12th, or a student who has just finished his graduation or any professional course, the opportunities which are available outside are plenty. He has enough choices to make. So our economy is growing, so there are enough things coming up. So the opportunities are plenty. So because of which maybe that but since there are many opportunities available, people choose different things, and armed forces is one of the opportunities which is available. Secondly, जो आर्म फोर्सेस एक बार ज्वाइन कर लेता है, एक बार wears the uniform, he will find that it is something which he can do with great pride. जो एक जवान है उसको यूनिफॉर्म पहनते ही, और या अफसर यूनिफॉर्म पहनते ही, उसकी जो प्राइड होता है, जो सेल्फ एस्टीम होता है, वो एकदम बढ़ जाता है। वो जो काम कर रहा है वो इस हिसाब से काम कर रहा है, वो देश के लिए, जो देश के लोगों के लिए उनकी संरक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो नॉर्मल सिटीजन है वो खुद अपना हथियार उठा के अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसकी टास्क जो है आर्म फोर्सेस के ऊपर है, जो बाहर से कोई अच्छा ना हो या कोई टेररिस्ट अटैक ना करे, इन चीज़ों का जो प्रोटेक्ट करने का जो टास्क है वो आर्म फोर्सेस के ऊपर है, जो आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर उनके ऊपर है। वो उनके लिए इतनी प्राइड है ये चीज़, जो एक बार जो ज्वाइन कर लेता है वो इतनी प्राइड लगता है उसमें। और जो सेल्फ स्टीम, जो जवान का जो सेल्फ स्टीम है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात है जो पूरी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। वो इटसेल्फ इतना प्राइड बन जाता है कि वो
उससे सर्विस करने में कोई उसको तकलीफ नहीं होती। और दूसरी चीज़ है, जो एक जवान जो यूनिफॉर्म पहनता है, उसका जो अटेस्टेशन का मतलब है जो जो कसम परेड होता है, उसमें वो एक ओथ लेता है कि वो जो भी टास्क उसको दिया जाता है जब प्रेसिडेंट के तौर पे और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे टास्क दिया जाता है, वो टास्क को पूरा करेगा, चाहे उसके लिए अपना जान का भी कुर्बानी देना पड़े। और ये चीज़ जो है सिर्फ आर्म फोर्सेस का जवान ही है, आर्मी का जवान ही है वो, या आर्मी नेवी एयरफोर्स के जवान ही है जो ऐसे एक ओथ लेता है कि वो कोई भी टास्क जो उसको दिया जाए, जिसको उसको अपना जान को कुर्बानी भी देना पड़े, वो उसको टास्क को कंप्लीट करेगा। तो ऐसी जो सेल्फलेस सर्विस जो है वो, और आपको कहीं और मौका नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ऐसे जो सर्विस कर पाए। और इसके लिए मेरे ख्याल से अभी जो आपने अग्निवीर का भर्ती एंड ऑल हुआ था, देश भर में जो है जितने लोग जो उसके लिए आए थे भर्ती के लिए, और हमारे भी जो ऑफिसर्स अकेडमी में भी जो सिलेक्शन होते हैं उसके लिए भी जितने लोग अप्लाई करते हैं, इस पर कोई ये नहीं दिखता कि इसकी जो मोटिवेशन लेवल, जो देश की जो युवा की जो मोटिवेशन लेवल है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने में, उसमें कोई कम हुआ वो। और हाँ, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, सो उनको किसी भी अपॉर्चुनिटी सीख सकता है, देख सकता है, बट मोटिवेशन लेवल अभी भी हाई है। और उसके लिए सेल्फलेस सर्विस एक बार वो ज्वाइन कर लेता है, सर्विस जो है उसको सेल्फलेस सर्विस करना ही पड़ता है। Thank you, sir. Thank you, Brigadier Sri Kumar. You have Thank you. rightly brought out traditions which do not evolve with time become regressive. ट्रेडिशंस को माहौल और वक्त के साथ चेंज होते रहना चाहिए, और जो ट्रेडिशन माहौल और वक्त के हिसाब से चेंज नहीं होता है वो ऐसे, जैसे ब्रिगेडियर श्री कुमार ने कहा, वो अपना रेलेवेंस खो देता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट स्टूडेंट ईरा उपाध्याय, डीएवी स्कूल इफको पारादीप से, वो अपना क्वेश्चन पूछिए। Sir, we salute the soldiers, those who are awake at the border so the countrymen sleep. Namaste, sir. This is Ira Upadhyay from DAB Public School, IFCO Paradev, Odisha. My question is to Sri Kumar, sir. Sir, you must have some thrilling and experience of extraordinary valor and courage. Kindly share your experience during your postings in frontier areas of India. Thank you for giving me this opportunity. Yes, sir. जैसे आपने बताया, मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 32 साल की एक्सपीरियंस है, एंड इस दौरान मैंने भारत के जो हर जगह पे सर्व किया है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल में है, या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में है, या हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, या डेसर्ट्स, राजस्थान के डेसर्ट्स में है। नाउ इन सब चीज़ों में एक जो कॉमन, जो मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है, कि हमारे देश के चाहे किसी भी कोने के मतलब जो सिटीजन है, जो लोग हैं, उनकी जो नज़रिया है फौज के खिलाफ, मतलब जो फौज के द वे दे लुक एट द आर्मी और आर्म फोर्सेस इज, दे हैव लॉट ऑफ respect और एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द आर्म फोर्सेस। चाहे वो सिविल एरिया में, जैसे कोई मेरा एक्सपीरियंस एक है जो 1992 में जब देश भर में रायोट्स हुए थे, आप लोग यू मस्ट ऑल नॉट बी इवन बॉर्न देन, बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। देयर वर सर्टेन इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड इन अयोध्या, बिकॉज ऑफ व्हिच देयर वर रायोट्स ऑल ओवर द कंट्री। तो उस समय मैं पोस्टेड था गुजरात में, गांधीनगर में, और अहमदाबाद में भी काफ़ी रायोट्स हुए। और उस दौरान जो है जब आर्मी डिप्लॉय होते थे, जब भी रायोट्स होते थे, तो जब कंडीशन और जो सिचुएशन पुलिस के हाथ से बाहर हो जाते थे, तो आर्मी के कॉलम्स डिप्लॉय हो जाते थे। सो उस दौरान, उस जो तकरीबन 2 महीने के टाइम में, हम मेरे यूनिट के जो कॉलम्स है वो तकरीबन 7-8 बार जो है अलग अलग जगह पे डिप्लॉय हुई थी। तो उस दौरान मैंने देखा गया कि जो जैसे ही वो फौज की कॉलम आ जाती थी, उस इलाके की जो मोहल्ले के जो लोग थे, उनको एकदम जो इतनी सेटिस्फैक्शन और इतनी कॉन्फिडेंस आ जाते थे कि अभी फौज आ गया, अभी और कुछ नहीं होगा। तो वो हमें फील होते थे, और वो जो हमारे पास आके बोलते थे, साहब आप लोग आगे, अभी हम बच सकते हैं, अभी इतना ये इंसिडेंट एंड ऑल हो गया, बट अभी फौज आ गया, हम बच जाएंगे। वो चाहे अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो,
सबको ये लगता था कि हाँ अभी फौज आ गया तो अब हम सेफ है। तो ये and वो चीज़ देखते हुए जो है हमें भी जो अच्छा लगता, हमें भी लगता था कि यस इनकी कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, और हम अपने टास्क जो है पूरी जो है कर देते और उनको इंश्योर कर देते वो सारे, मतलब उनको उसके बाद कोई अच्छा ना होगा और सब जो है सेफ हो, और जिस चीज़ को जो जैसे भी कोई किसी को कोई रिलीफ चाहिए, चाहे खाने के ऊपर या फूड के ऊपर हो, या कोई इंजर्ड है उनको रिलीफ करना है, वो सब चीज़ें हम करते थे। सिमिलरली बॉर्डर के ऊपर जब हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चाहे कश्मीर में होते थे, उस समय में भी जब भी कोई इंसिडेंट होता था, जब कोई फायरिंग शुरू हो जाता था, आर्मी मूव होते थे, और हमारे सबसे बड़ा मतलब सबसे मेन कंसर्न ये होता था कि कोई सिविलियन जो है, जो हमारे और टेररिस्ट के बीच में जो फायरिंग चल रहा है और टेररिस्ट को जो हमने न्यूट्रलाइज करना है, बट उस दौरान कोई सिविलियन को कोई गलती से भी गोली ना लगे, कोई बच्चे या कोई लेडी हो या कोई आदमी हो, किसी को भी कोई कुछ हादसा ना हो, ये हमारी सबसे बड़ी कंसर्न होती थी। और ये उनको भी पता था, सिविलियंस को भी पता था कि फौज अगर आ गया, वो फौज की कंसर्न सिविलियंस के ऊपर है, और वो अगर हम जो सिविलियन अगर इस पास है तो फौज फायर भी नहीं करेगा चाहे खुद को नुकसान उठाना पड़े। और इसके कारण कुछ हमें नुकसान भी उठाने पड़ते थे। और ये भी ये चीज़ एक और इसकी जो नेगेटिव बात ये होती थी कि कुछ ये जो टेररिस्ट है वो भी जानते थे कि अगर सिविलियंस हो तो फौज फायर नहीं करेगी, और फौज जो है उनको बचाने के चक्कर में नो हमारे ऊपर फायर नहीं, उनको भी पता था, तो वो उसकी फ़ायदा भी नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते थे। बट ये चीज़ होती थी और हमारी टास्क था, हम सिविलियंस को नहीं मतलब उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से काम करते थे। एंड ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा लगता था कि इतनी कॉन्फिडेंस सिविलियंस और जो वहाँ पे जो नागरिक है उनको उनकी इतनी कॉन्फिडेंस है फौज के ऊपर, वो हमें अच्छा लगता था। और तीसरी चीज़ है, जब मैं डिप्लॉयड था जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में, ये चाइना बॉर्डर में, अरुणाचल तवांग, जहाँ पे 15-16 हज़ार फीट के ऊपर डिप्लॉयड थे, और वहाँ पे हम डिप्लॉयड मतलब हमने वहीं पे रहना, चाहे समर हो विंटर हो, चाहे बर्फ़ गिर रहा हो चाहे बारिश हो, हमने रहना वहीं पे, और हमें वहाँ पे वहीं पे अपना पेट्रोलिंग टास्क करना है। तो वहाँ की जो लोकल्स है, जो लोकल वहाँ पे जो रहते हैं, जो उनको कुछ चीज़ों में हमें उन्हें हमारी मदद चाहिए होती थी, कि उनको राशन चाहिए होती या कोई ऐसी चीज़ें हो चाहिए तो हम सप्लाई कर सकते थे, क्योंकि हमारे सपोर्ट स्ट्रक्चर है। बट दूसरी चीज़, जैसे जो जो उस टेरेन, उसके जो जगह के बारे में जो नॉलेज है, जो उनको जो लोकल है वहाँ पे रहने वाले, जो वहाँ पे जो गोट्स चराते थे, उनको हमारे से ज़्यादा वो जगह के बारे में पता होते थे, और वो वॉलंटियर होकर हमें मदद करते थे कि रास्ता बताने के लिए, या कहीं हमें किसी और जगह जाना है, वो हमारे साथ जो है चलने के लिए तैयार थे, दिन रात चलने के लिए तैयार थे, और जाके हमें रास्ता दिखाया और जगह दिखाया। तो ये सब चीज़ें जो है देख के भी अच्छा ऐसे लगता था कि हाँ, ये जो देश की जो सिटीजन्स है, जो सिविलियन है, वो उतना ही कंसर्न है हमारे ऊपर जितना हम उनके ऊपर कंसर्न है। जो हमारे हमारे कंसर्न उनको प्रोटेक्शन के लिए था, उतना ही कंसर्न उनके भी हमारे ऊपर। तो वो जो विश्वास है, वो हमारे लिए काफ़ी strength होता था। They used to give you much more confidence, more strength in doing our duty. So that is something which I've experienced all throughout wherever I was posted. Thank you. थैंक यू ब्रिगेडियर श्री कुमार। जो देश का जो जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे हमें, जो सिटीजन का इंडियन आर्म फोर्सेस पे कॉन्फिडेंस है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है तीनों सर्विसेज के लिए। देश का और देशवासियों का जो प्यार है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और अच्छा करने के लिए। और यही शायद मोटिवेशन होता है जो आज हमारे तीनों पैनलिस्ट को अपनी जान की भी बाजी लगाने में उनको कोई हिचक नहीं हुई, और अपने अपना जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अपना टास्क पूरा किया, और गवर्नमेंट ने उनको जो अवार्ड देना था वो अवार्ड भी दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैष्णवी, क्लास 9 नैटको हाई स्कूल से, वो अपना क्वेश्चन पूछें। वैष्णवी। Hi, sir. I'm Vaishnavi from Natco High School. It's my great pleasure to talk to you. We have learned and read a lot of saddening facts about different wars across the globe and their effects on human beings and the environment. Sir, what I would like to know is whether war is the only solution for issues that boils among the nation. ब्रिगेडियर श्री कुमार। Thank you, sir.
Thank you, Vaishnavi. A very relevant question, and I'm sure this is something which is bothering all of you, all young minds, कि ये wars क्यों होता है और wars अलग अलग देश जो है war क्यों करता है और आप लोग सारे अभी जैसे पता ही होंगे करंट अफेयर्स के आप लोग सब पता है कि अभी जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है वॉर चल रही है एंड जिसके कारण काफ़ी नुकसान उसी एरिया में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है हमारे लिए भी काफ़ी कष्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए भी कष्ट हो रहा है तो काफ़ी लोग तंग आ रहे हैं तो ये सवाल कि वॉर जो है अगर कोई किसी चीज़ की सोल्यूशन है ये पूछोगे तो ये नहीं है वॉर किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है मगर वॉर जो है वो ऐसे भी है कि वो हम कई चीज़ों में अवॉइड भी नहीं कर सकते सो ये आपने देखा गया होगा कि हर जगह पे जो दो देश के बीच में कुछ तनाव होती है वो तनाव डेवलप होते जाते हैं उनकी अपनी दोनों देश की इंटरेस्ट होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक देश जो समझता है मैं ताकतवर हूँ तो वो उसके दूसरे देश के ऊपर लड़ाई शुरू कर लेता है मगर ये लड़ाई तो हो जाता है बट उसको ख़त्म करने के लिए डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस और टॉक्स जरूरी है और वही डिप्लोमेसी और टॉक्स ही जो है वॉर को ख़त्म करता है और पीस आ सकता है बट एट द सेम टाइम अगर हम तैयार होना चाहिए वॉर के लिए नहीं तैयार होना चाहिए अगर ये पूछोगे तो ये जरूर हमेशा तैयार होना चाहिए हमारे पास ताकत होना चाहिए कि हम अगर ज़रूरत पड़े हमारी जो अपनी इंटरेस्ट जो है अपनी देश की इंटरेस्ट अगर खतरे में हो तो हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि हम लड़ाई कर पाए और हम अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए सिमिलरली अगर कोई दूसरी देश है वो समझता है अपनी इंटरेस्ट खतरे में है और वो हमारे देश के ऊपर और हमारे ऊपर अगर लड़ाई करना आए तो हमारे पास ताकत होना चाहिए हम उसको प्रिवेंट करें तो ये चीज़ जो ज़रूरी है फौज और डिफेंस फोर्सेस और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको जारी रखना हाँ लड़ाई जो है वॉर जो है जरूरी है नहीं है ये मैं बोल सकता हूँ कि वॉर नहीं होना चाहिए बट इट इज़ इनएविटेबल जब से ये हमारे पुराने ज़माने में किंग्स होते थे किंगडम्स होते थे और अभी उसके बाद वो अभी नेशंस बन गए नेशंस मतलब 189 और 190 नेशंस है पर उनकी सबके अपने अपने इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट को अगर जारी रखना है वो अपने इंटरेस्ट को आगे करना है उसके लिए उनको अपनी आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और अगर जब एक दो देश अपने अपने इंटरेस्ट में क्लैश हो जाता है तो हमेशा वो लड़ाई पे हो जाता है सो इट इज़ इनएविटेबल आई वुड से इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग बट इट इज़ इनएविटेबल आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन Thank you, sir. वैष्णवी आपको ये मालूम होना चाहिए 1947 में हमें आज़ादी मिली एंड सिंस देन हम इंडिया को 5 बार लड़ाई करने का मौका मिला लेकिन ये पांचों बार कभी भी हमने लड़ाई इनिशिएट नहीं करी पांचों बार किसी और देश ने लड़ाई इनिशिएट करी लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पांचों बार हम पीछे नहीं हटे हम तैयारी करें और हमने उस लड़ाई में बखूबी से अंजाम दिया और सक्सेसफुल होके आए इंडियन आर्म फोर्सेस अपने देश के इंटरेस्ट के लिए हरदम तैयार हैं और हम किसी भी लड़ाई की सिचुएशन में अपना सक्सेसफुली उसमें हम बाहर आएंगे अब मैं कार्तिक अभिनव से रिक्वेस्ट करता हूं ये हैं क्लास 12th के स्टूडेंट विवेकानंद विद्यालय जूनियर कॉलेज चेन्नई कार्तिक Namaste, sir. I am Kritik Abhinav from Vivekananda Vidyalaya, Chennai. First of all, thank you for elucidating certain instances which are filled with valor and bravery, which are keep on refreshing and inspiring all of us. Now, the question from my side is: should all the army officers forget all their pleasure as well as their family, in order to work dedicatedly for the country? Thank you, sir. Good afternoon, Karthik. Very practical question, I would say. Again,
There's nothing like an armed forces officer or a soldier has to forego his pleasures and forget his family to serve the nation. Today, a life in the armed forces it's a way of life. It is not a 8-hour job or a 12-hour job. It is a 24-hour job. So you become part of the armed forces, and you are always on duty. So that is something which one has to accept. But that does not mean, और ये नहीं बोलता है कि you cannot have, you cannot pursue any pleasure, you cannot not have any hobby, or you cannot look after your family. आर्म फोर्सेस पूरा ही एक फैमिली है. हम अपने जवान, उनके ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज भी हमारे ही बाग है. तो उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी भी प्रॉब्लम्स है. द ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर देयर प्रॉब्लम्स. एंड ऐसे कभी नहीं हो सकता कि एक जवान को, एक फैमिली को कोई प्रॉब्लम है और ऑर्गेनाइजेशन बोले अभी तू अपना ये है, यू गो एंड लुक आफ्टर योर प्रॉब्लम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. दैट इज नेवर हैपेंस. And the other thing is, if you join the armed forces, it gives you so much of opportunities to pursue any of your passion. I think no organization can give you such set of freedom to pursue your passion. Where if your passion is to travel, you get enough opportunity to travel. If your passion is adventure in terms of climbing mountains or going sailing or flying, you get enough, and that's all part of your job. That's the best thing. It's part of your job. You are climbing mountains. You are living in exotic places. It's part of your job. So you get more pleasure in doing all these things. If your hobby is photography, you'll get enough opportunity to do photographs. So these are things which no organization can give you such opportunities. In any other organization, if you're working in an IT company, you got to spend 8 hours, 12 hours doing the job of that company, whatever you have been tasked to do it. You cannot say that, my pleasure is photography, so I'll do photography there and then I come do the job. You can't do that. And if you're part of the armed forces, you're an officer in the armed forces, you're a soldier in the armed forces, you're doing your job, you can take your photographs, continue with your job. So all that opportunities are available for you. So saying that you have to forego your pleasure it's absolutely wrong. There's nothing like that happens. And you can look after your family. There's enough administrative support which you get from the armed forces to look after your family. Today times are different. It is not, you don't take 3 days, 4 days to travel from one part of the country to another part of the country. You can travel from, I was posted in Tawang. From Tawang, I had an emergency at home. My wife was staying in Pune, and she was, on the family manor, and there was an emergency. I got to know at 6 o'clock in the morning in Tawang. I was further ahead of Tawang. It was 15,000 feet. Now from there, I could take a chopper to Guwahati, take a flight to Bombay, and then take a cab to Pune. So I reached by evening 6 o'clock. I was in Pune. So that's sort of communication lines we have, communication facilities we have. So कोई ऐसी ये नहीं है कि आप फौज में सर्व कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली की काम या ये नहीं कर सकते. That's all things of past now. Today it's very much possible, and you can have a good, absolutely fruitful service in the armed forces. At the same time, look after your family and look after your own passion and your pleasures. Karthik, I hope I cover your point. Thank you, sir. Yes, unless you are truly satisfied and you are confident that your family is looked after, you can't really serve the nation. And that's what we in the armed forces endeavor to ensure, that our soldiers, sailor, airmen, officers, their families are looked after, and you get enough opportunities to take care of your passion, your hobbies, and that's when you become productive. That's when you can do your job the best way. And the Brigadier Sri Kumar has amply clarified that issue. I'll now request our next student, Charu Gautam from BK Senior Secondary School, Bulandshahr. Charu. What I'll do is I have the question that Charu wanted to ask. I'll read that question for everybody's benefit. Charu wanted to know
In fact, she wants Group Captain Anindo Sood to answer this. She says, tell us some major missions during your complete tenure. Yes, Anindo. Okay. You know what used to happen earlier? Employment of Air Force was considered as escalatory. So, if you would employ Air Force, that means you would want to take the war or the skirmish or whatever you could call it to a next level. So, therefore, you realize that in the history, in the recent history, the Air Force has been used very sparingly. However, things changed post the Balakot mission. That is when the Air Force was fully utilized to take on the terrorist camp across the border. Okay. During my tenure in the Air Force, when I was around four years of service, that was when the Kargil war had started. Okay. During the Kargil war, I was in a Jaguar squadron. I had just about joined that squadron. I was already qualified in the MiG-21s, but now I had been shifted to a Jaguar squadron. So initially, because I had not yet started flying, so I would do all the groundwork for the pilots who would actually go for the missions. So we used to wake up whole night, whole day, just remain in that small bunker, keep making maps, keep doing all the groundwork for them. And moment the things started to reduce, the escalation started to reduce, that was the time they started to fly me. And that was also going at a very, very hectic pace. So that is how I saw Kargil in the initial phase. Thereafter, within the next 2 years, I became operational on the Jaguar fleet, on the Jaguar aircraft, and that is when the Parakram episode started. Okay. This time I was qualified, I had my QRs, and I could fly. So that was the time when we were told at regular intervals, okay, load the weapons, okay, offload the weapons, depending on what would happen at the highest level. We would also do one very wake-up missions. In this, what we would do is, we would fly 10 to 15 to 20 aircraft together and fly towards the border. All of us together flying low, but flying high enough for the enemy to pick us up. This would make them a little nervous. So we would do this very regularly, just to keep the enemy on its toes. After Parakram, I was somewhere related to the flood relief operations which happened at Kedarnath. That is when I was at Bareilly, and these helicopters were operating from Bareilly for this mission, and we would help them in their groundwork. Another place where I was really closely involved was post the Uri attack, which happened in 2016. That is the time when I was in a place where I was controlling the airspace in Jammu and Kashmir. We would deploy our secret radars all over the place. We had all the inputs what the enemy was doing. So I was controlling that whole airspace from my location. So that is where I had a lot of experience, a lot of exposure to how the air defense aspects of flying work. So that is how operationally we have seen things. However, during our course, in my course of flying, we've done a lot of detachments, a lot of flying over valleys, over deserts, flying really, really low, maybe 200 feet, just above the buildings, and firing a lot of weapons, very serious, expensive weapons, but very accurate weapons. That is all how life has panned for me. Thank you. Wonderful. I think that should be motivating factor for you to join the Air Force. Now we'll have Titiparna Mondal from Adarsh Residential Public School, Vijayawada. Let's have you asking the question. Titiparna. Okay, the question that the student wanted to ask was, what message would you give to the new generation if they want to join the armed forces? Would you take that on, Anindya? Okay, there's a common belief that kids feel that once you join the armed forces, there is no more studying. Forget it. It just does not happen like that. Okay.
modern fighters, modern weapon systems, they're all tech intensive. Okay, you have to study day in, day out. You have exams every year. I still go through exams for being in the Air Force. And these exams test you for what all? I'll tell you now. Skill, that is your primary work skill, your knowledge base on your systems, your physical fitness, your mental toughness, the ability to perform under stress, your discipline aspects, and your passion for the chosen stream that you have got. So, if you are looking to join the armed forces in whichever stream you want to, these are the essential qualities that we are looking at, and this is what you need to dwell upon. But what would you gain when you join the armed forces? That has been deliberated or spoken about by almost all other panelists. So I shall not really go deep into it. I would just say it's a disciplined life. You have the best of facilities for sports, riding, adventure, anything that you would want to do. You travel the nation. You meet all kinds of people. The unit will have a person from each and every part of the nation. It's a homogeneous society and a very, very well-knit society. That is what you should expect when you join the armed forces. I'll give you a very small example connected to the previous question. When my elder daughter was born, I had to go out on a detachment or a TD. I saw my daughter after 3 months. But when she was born, I had my squad mates looking after my wife and that child for the 3 months. And it was so helpful. So that is the kind of environment you're looking at. Thank you. Has studied more in the services in school. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ अच्छा, आदित्य का क्वेश्चन जो था वो इस हाँ आदित्य का क्वेश्चन था कि हाउ डू द आर्मी पर्सनल गिव द टाइम टू द फैमिलीज? Commander Supradeep? Let me tell you that our families are as important to us as anybody else's. So to say that because we are in the armed forces, we'll not be able to care for our families, or that we don't miss them, or that we value them any less would be an incorrect statement. It is about the quality of time that we give to our families. I still cherish every moment that I get to spend with my family. And the armed forces make it very, very convenient for us to do our best for our families. Our families cherish a lot of things that they realize they have got because they are part of this large Army, Air Force or Navy family. The welfare associations that they are part of, the schools that the children go to, the cantonments that we live in, the community that we are part of are one large family, and they all contribute to help us being better parents, better spouses, and better children. And I start my day with my family, and the quality of time is very, very important. So there might be times when I am away on a TY duty, or my ship is deployed, or I have to be posted away from my family. But whenever I get a chance, I come back to them. The armed forces gives us adequate leave, more than adequate leave, connectivity, LTC,
and these benefits and facilities are far too many to be named, and that is why we are able to do so many things with our families and for our families. And I dare say that this is one reason why mothers and fathers who are in the armed forces, they are loved so much by their children, because they know, the wives know, the parents know that in addition to being a good father, a good spouse, a good sibling, a good parent, this person is also doing exemplary work for the community in general and the nation at large. Thank you. That's beautifully brought out. Let's have now Snehita Shri from Tripura English Medium School. Snehita, Yes, sir. good Very to have you. good one, sir. Firstly, it is a great honor for me to be here with all of you. And so, when I read about the stories and bravery of the Indian Army, there was this patriotism in me, and obviously questions, and that I want to ask today. The first one would be, so with all the great life experiences that you have faced, can you please share with us any one life-changing moment for you? All right. I would want to tell you that life in the armed forces are very special, and every day brings with it new challenges, new opportunities, and every day is special, and every day we get to learn new things, meet new people, and have experiences that enrich our lives. But if I were to recount just one, I will tell you that my ship was once deployed on an anti-piracy mission, and we were deployed in the Gulf of Aden for 100 days. And for fueling our ships, we would enter a port in Oman called Salalah. And whenever we went to Salalah, there would be scores of people, the Indian community there, who would be there to welcome us. And they would want to see our ship, they would want to meet us, and they would take us, they would host us in their homes, they would bring gifts and sweets for us. And on one such occasion, I found one gentleman on the jetty, an old Sikh gentleman who was sitting there and was staring. And he obviously had mobility issues. He was on a wheelchair. And a lot of people, there were huge crowds. And I kept watching this person. And he spent about an hour and a half on the jetty. I went down to him and I asked him as to what he was there for and why he was what he was waiting for. He said that I just wanted to see an Indian ship. I have been here since I was very young, and I'm now a citizen of this country. But every time an Indian ship comes, I want to go there, and I'm very happy looking at the ship from this distance. I said, sir, if you would want, we can carry you onto the ship. So I got a few of my sailors, and we literally carried his wheelchair and took it onto our upper decks. He somehow managed to get himself off the wheelchair, kneel down on the ship, and he just touched his forehead to the deck of the ship. And he said that, with my mobility issues, it's been a long time since I've been to India. And having come here all the way, it's as if you brought India to me. And I feel that I have had an experience of being on my motherland and touching my motherland, so far away from what I would otherwise call home. So I've realized that people across the world, the Indian diaspora, they look up to us and they value our rich country. And that is why it is so special for us to be able to take our ships across the 7 seas and give them an exposure of India. And they're so proud to be a citizen of this great country. And even if they have left the country, they're no longer citizens, they still value the fact that they are Indians and they are connected to the same roots that you and I are. Thank you. That was very inspiring, sir. And my second question is, what would you consider fulfillment in your life to be? I feel that fulfillment comes at various levels. You have a fulfillment as somebody contributing to society. You have seek fulfillment in being a good parent. You seek fulfillment in doing something for your nation. But
if I were to sum it all up, I feel the satisfaction that you wake up every morning with a great sense of enthusiasm to face the day and the challenges that it brings and the opportunities that it brings forth. And at the end of the day, if you can go back to sleep having done your best, I feel you've had a very fulfilling life. So do your best on a consistent basis, and look not for success but for opportunities. And success ultimately is the measure of happiness within. And if you can wake up every morning with a cheer on your face and with optimism to face the day, and go back to sleep at the end of the day with the satisfaction that you've done your best, I think one has had a very fulfilling life. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. In fact, Snehita, the incident that Commander Supradeep recounted, and when he said that the Sikh gentleman was extremely delighted to come on the ship and say that he felt as if India has come to him, you would be interested to know that all ships are as if sovereign territory of the country. Our ships are sovereign, and when they visit any other port, they are pieces of India visiting those ports. And so that Sikh gentleman wasn't wrong when he said, as if India has reached him. And that's how it is. Okay, let's have Adhishek from KG International School, Coimbatore. Adhishek? Happy afternoon, all. This is Adikesh from KG International School, Annur, Coimbatore District, Tamil Nadu. My question is there any principle in the war like not to attack the foe during the late evening or night? Thank you. Adhikesh, that's a very, very important question, a very, very relevant one. Let me tell you that the armed forces are guided and are expected to strictly abide by international conventions on the law of armed conflict, on international humanitarian law. And there are many, many such laws, the San Remo Convention, the Geneva Convention, and these are rules and guidelines, laws and conventions that we have to abide by. Of course, with the revolution in military affairs, the rule that you were mentioning about not waging war at night, that no longer stands. In fact, the armed forces are not blinded by night, and we continue our operations through the dark hours and at all times of day and night. But yes, we follow very, very strict rules, and these rules include the fact that we are not supposed to harm civilians in any way. Brigadier Srikumar brought out very pertinently that civilians are not fair game when it comes to armed forces. So we would rather run the risk of being attacked by somebody in civil clothes rather than attack a civilian. There are also many other rules. Hospitals and ambulances are not attacked by armed forces. We also follow the regulation that civil aircraft and civil ships are not attacked by the armed forces. And I would like to tell you that prisoners of war are given the same respect that we would give to our own soldiers. They are given the same courtesies that we extend to our own officers and soldiers. And one example that I can give you is during the Kargil war, when we had bodies of the adversary on our territory and they refused to take them back, we gave them their last rites in the religion that they practiced, and with the same level of seriousness, solemnity, and respect that we would expect to give to any one of our near and dear ones. So we follow rules that make us better in war, and just like there are rules that civilians follow, there are rules that we follow so as to become better warriors. Thank you. Thank you, sir. Wonderfully articulated, Commander Supradeep. And that's one of the main reasons why Indian armed forces are respected around the world. We have a history of following rules and fighting as per the norms that has been decided by the international community. And of course, as Commander Supradeep said,
not fighting in the night time no longer is a issue anywhere in the world. We have Vriti Shiv from Kanakpura, Bangalore. Let's have Vriti asking question. I saw you on. Good afternoon to one and all present here. My name is Vriti Shiv and I am from Edify School in Bangalore, Karnataka, and I am from 4th grade. Thank you for giving me this wonderful opportunity to come here and interact with the Gallantry Award winners. My question is for respected Sri Kumar sir. My question is that what all difficult moments have you gone throughout your service and how did you overcome them? Thank you, Viti, for your query. If you're asking difficult moments which I had undergone, there would have been many difficult moments. Some of this would have been concerning my profession. The profession means whatever task which I was doing, and some of it might have been my personal issues. But coming on to professional ones, I've had many incidents where when I was posted on the line of control, this was a time when I was in 2002, 3, when you had Operation Parakram going on, and there was heavy shelling going on all over the place, and we used to carry out a number of operations to dominate our areas along the line of control, and also to prevent terrorists from infiltrating. So there was this particular moment when we were doing a patrolling along the line of control, and we had gone ahead of our post towards Pakistan side, and we went into a minefield. Now, there minefields are laid at many places, and we don't have even records of those fields where have been laid. So you don't even know whether a particular area there's a minefield or not. You only come to know when at least when you see some wires, some strand wires there, or when somebody steps on a mine and his legs get blown up. So such incidents do happen. And in this thing, we went ahead, we moved ahead, and we went into the minefield. There was a JCO behind me walking. He was a few meters behind me, and he had his leg blown up. So suddenly we all realized, we were around 8 of us. We all realized we are inside the minefield. One of them had his leg blown off. We can't even know whether how much inside we are inside the minefield, or the area ahead of us is clear of minefield, or there are further mines there, and how much behind is a clear area, that also we didn't know. So that was a pretty difficult time we had. And after that, any step which we took, we were not clear whether we'll be stepping on a mine, because there's no record, nothing of whether this thing is. So we had to then retrieve our steps, literally trying to figure out how we came forward, trying to figure out the steps which we had taken, and step on that and move back. At the same time, evacuate this JCO also, because he had leg had blown up. We had to carry him also back. So that was a very difficult situation which we were in. But my faith in my Jawans and their courage is what got me through that thing out of the minefield. We didn't have any further casualties, but we were able to retrieve that JCO also. So that is something which remains in my mind whenever I think of a difficult situation. Thank you. Indeed, I must say entering minefield is actually, and coming out of it is challenging, and being lucky. Do you have something to say, Supradeep? I'm sure the other esteemed panelists would agree that when we have a challenge ahead of us and we are allowed to do our job, it gives us a tremendous sense of satisfaction. While we are doing it, we don't realize the challenge that we are being
in Visakhapatnam. And that was a huge challenge for me. I did not feel that we were doing our bit. We felt that we are failing in our duties. So I went to my seniors and said that, sir, whatever repairs have been done, we'll be happy with it. But let us go back to our city, which is Chennai, where this ship is based, so that we can we can join the relief efforts. And people, of course, they said that, now is no time, the weather is not good, and why do you want to go there? There are enough people in Chennai who are going about their jobs. But I could not sleep peacefully. The next day, I again appealed to them, and they were kind enough to let me go. And we put on our best speed and reached Chennai, and we entered Chennai harbor in the middle of the night. And this was around 3:30, and 6:30 with first light, me and my shipmates, we had prepared rations, and we were ready with our medical kits and whatever we could do with our Geminis. And we hit the roads of the city, which were flowing like rivers. And it was a great satisfaction for us that where we could have actually been comfortable and happy in Visakhapatnam, but we had got an opportunity to get back to our home port, which was Chennai, and do our bit for the city, and to see the city come back to life within a week or 10 days of the floods, and our small contribution towards helping it rise to its feet was really a huge satisfaction. Thank you. Oh, that was truly inspiring. With that, we come to the end of today's session. It was, I would say, most informative, and I just said inspiring. We had 3 Gallantry Award winners with us today who have helped us to understand the kind of challenges that the armed forces face, and how does our training and strength of our character actually help us to overcome those challenges and come out on the tops. Brigadier Sri Kumar actually educated us on the nuances of the counter-insurgency operations at the LC, that is the line of control, the border we have with the temporary border that we have with Pakistan, the challenges that one faces under live fire when there are people out there to shoot you. That's what Brigadier Sri Kumar helped us to understand. We had Group Captain Anindo Sood telling us about the challenges of night flying and emergency during night flying. When your undercarriage just refuses to lower down, and you may have to eject and may become a casualty, or even worse. Under such circumstances, how do you land your aircraft back safely and possibly save the country huge sums of money, and of course the life of the pilot? We had Commander Supradeep telling us how he saved the life of 3 people in the sea during dark under the extreme challenging situation where he had to actually swim and sail through a situation where there was fire all around, and he managed to save the lives, I would say. And that's a matter of great satisfaction for any individual. I would like to thank all the 3 panelists for taking out their time and trying to explain and share their experiences with us today. Thank you very much. And it was great having you all today. And all I can say is this project VeerGatha has given us a wonderful opportunity to connect with our future, our students. And I hope you participate in large numbers and be aware about your armed forces. It is your armed forces, it's your army, it's your navy, it's your air force. Thank you, and Jai Hind. Thank you.